अरोड़ा जी करिए, स्टार्ट कीजिए। कर दूं? ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। I on the behalf of Sonipat branch of NIRC of ICI, a very warm welcome to our today guest speaker, CA Navya Malhotra ji, a very dynamic and young chartered accountant. I also welcome our branch chairman, CA Anuj Mangla ji. Also welcome, appreciate presence of dignity of our Galaxy of Past chairman, CA Praveen Madan ji, and also warm welcome to all other respected members. It is our privilege to hear CA Navya Malhotra ji on live webcast for sharing his valuable knowledge on today's topics GST audit. Before starting the session, I would like to share brief profile of CA Navya Malhotra ji. CA Navya Malhotra ji, member of Institute of Chartered Accountant of India since 2016. He is DISA qualified. He is certified member of GST of ICAI. He is special invitee to the Indirect Tax Committee of ICAI 2020-2021. He is faculty member of Indirect Tax of ICAI. He is also associated with the Big Four consulting firm in the indirect tax practicing, accounting and advisory practice also. He has addressed more than 250 sessions on GST. He is young and energetic, practicing chartered accountant with zeal to dig up into the nuances of GST laws. Being a researcher at heart, he has done rigorous research and has done many sessions on the GST, and to keep at pace at the latest changes with the critical analysis on the implications of the provisions of GST Act. He is regular writer and author of various professional magazines, forms, etc. Very thankful to CA Navya Malhotra ji. Now I invite our branch chairman, CA Anuj Mangla ji, for welcome speech. Over to CA Anuj Mangla ji. Thank you, Aroda ji. Respected Navya Malhotra ji, today webinar guest speaker on the topic of GST audit, chairman of Sonipat branch, member, other member and students. On behalf of Sonipat branch, a very warm welcome to all of you. दोस्तों, परसों हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला कि हमारी ब्रांच सोनीपत ब्रांच के हमारे सीनियर मेंबर विशाल धमीजा जी हमारे बीच नहीं रहे। सुनकर एक बार तो मन को बहुत ही पीड़ा हुई कि जिनसे हम अभी तक मिलते आए थे, इतने सरल और शांत व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हम भगवान से, सोनीपत ब्रांच के बिहाफ पे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को यह तो पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। थैंक यू। अरोड़ा जी, थैंक यू अनिश मंगला जी। नाउ आई रिक्वेस्ट CA Navya Malhotra ji to start his technical session on GST audit. A very good afternoon to all of you. नमस्कार आप सबको। अरोड़ा जी, अनुज मंगला जी, मदान साहब, all the other members joined and will be joining in the piece of time. A warm welcome to all of you and heartiest thanks to the branch for letting me deliberate on such a critical topic right now. It is a burning topic, hot topic, favorite topic. पर अभी मैं ये समझ पा रहा था कि सर आज जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ ऑडिट एंड इंट्रिकेसीज ऑफ ऑडिट, और उसी बीच मुझे पता है आप सबके मन में सबके एक सवाल घूम रहा है कि क्या डेट एक्सटेंड हो जाएगी, क्या इसकी डेट आगे जाएगी एनुअल रिटर्न और ऑडिट की। सर फॉर नाउ द डेट इज 30th September 2020, 30 सितंबर 2020 की डेट है। तो हम सबको फाइनली 99C के लिए 2018-19 की 30 सितंबर की डेट से पहले सबमिशंस करने के लिए अभी डेडलाइन आ रही है। अब द क्वेश्चन कम्स कि क्या डेट एक्सटेंड होगी या डेट आगे जाएगी या क्या। टेक्निकली many forums, even Institute of Chartered Accountants of India Indirect Committee have represented to the government for the extension of date few days back. All mentioned to be happening in coming week, hope so, but अभी commit नहीं कर सकते कि डेट बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी,
लेट अस से डेट नहीं आगे जाएगी, अनसर्टेन है, बट वी कैन ट्राई टू कीप द पेस, हम अपना पेस मेंटेन कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम काम करते रहें। सर मेरे पास आप लोगों का चैट बॉक्स खुला हुआ है हमेशा ड्यूरिंग द सेशन कोर्स, तो आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोग कहीं डिस्कशन करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछ आप कभी भी पोस्ट कर सर आवाज आ रही है? अरोड़ा जी आवाज आ रही है? हाँ अब ऑडिबल है सर, पहले बीच कुछ में ब्रेक हो गई थी। डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ब्रेक हो गया था। यस, ठीक है सर। तो बिफोर कमेंसिंग ऑफ द सेशन, मैं आप सबसे फिर से पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए सर कितने लोगों ने एक्चुअली में, कितने लोगों ने अपना एनुअल रिटर्न और ऑडिट स्टार्ट कर दिया? सर कितने लोगों ने एनुअल रिटर्न और ऑडिट स्टार्ट कर दिया? प्लीज चैट बॉक्स में एक बार यस और नो लिख दीजिए। बस मैं कोई और सवाल नहीं पूछूंगा, बस ये बताइए कितने लोगों ने हम में से एनुअल रिटर्न और ऑडिट एक्चुअल में 2018-19 का स्टार्ट कर दिया है? सर यस और नो लिख के बताएंगे सर चैट बॉक्स में, वाई या एन लिखिए, सो दैट वी एक्चुअली कम टू नो कि हमारे पास कितने लोगों ने अभी भी पार्टिसिपेटिवली स्टार्ट किया हुआ है ऑडिट को। सर जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब लिखेंगे। चलिए मैं स्क्रीन भी शेयर कर दिया साइड बाय साइड। राजेश जी ने लिख दिया है कि मैंने नहीं किया है अभी, कोई बात नहीं। पूजा जी ने स्टार्ट कर दिए हैं एनुअल रिटर्न और ऑडिट्स। शिवानी जी ने अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो पवन जी ने भी स्टार्ट नहीं किया अभी, कोई बात नहीं। मोनिका जी ने भी स्टार्ट नहीं किया। तो अभी हम मान के चले कि हमें प्रवीण मदान जी ने स्टार्ट कर दिया है, मदान साहब ने स्टार्ट कर दिए हैं ऑडिट। सर इसका ये मतलब नहीं है कि हम डर जाएंगे कि सामने वाले ने कर दिया हमने नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ पार्टिसिपेटिंग थिंग दैट आई एम आस्किंग, कितने लोगों ने हम में से स्टार्ट किया और कितने लोगों ने अभी नहीं कमेंट्स कर पाए। इट्स नॉट कि वो कमेंट्स नहीं करना चाहते थे सर, ड्यू टू सम टाइम पॉजिटिव और अनदर वर्क कमिटमेंट्स कि हम ये सारी चीजों में फंस गए हैं और हम स्टार्ट नहीं कर पाए। सर अनम्यूट तभी करेंगे सर जब कुछ बोलना हो, नहीं तो अदरवाइज डिस्टर्बेंस होगी सर। ठीक है चलिए। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, मैंने उसके ऊपर एक मैसेज लिखा है। ठीक है सर, अब हमारा आज का टारगेट क्या रहेगा? वी आर टारगेटिंग एक्चुअली 4 सेगमेंट्स, 4 सेगमेंट्स को हम पढ़ेंगे सर। हम 2018-19 को पर्टेनिंग सारी चीजें पढ़ लेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे सर और चीजें भी जो 17-18 से रिलेटेड भी हैं। पर्टिकुलरली सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान देंगे जो 18-19 को इफेक्ट कर रही हैं सर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नोटपैड और पेन लेके बैठेंगे। whenever you feel आपको कुछ लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट करते रहेंगे सर साइड बाय साइड। सर आप इसको नोट करते रहेंगे, जहां आपको लग रहा है कि कुछ सही है, कुछ अच्छा लग रहा है, उसको नोट करेंगे। हाउएवर मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा, बट प्रेजेंटेशन में इतनी एग्जॉस्टिवली हम जितनी डिस्कशन करते हैं या जो हम 2 वे डिस्कस करके कुछ निकालेंगे वो सब नहीं होता। प्रेजेंटेशन में खाली पॉइंटर्स होते हैं, तो आप प्रेजेंटेशन में शेयर भी कर दूंगा ब्रांच के साथ, दे विल शेयर विद यू। बट बाय दैट टाइम आप लोग प्लीज नोट करते रहेंगे जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहा है सर। 2018-19 की डिस्कशन के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं जिन पे हमें ध्यान देना ही होगा आज की डेट में। क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ डूइंग द ऑडिट फॉर 2018-19। ठीक है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर लिखना है। साथ ही साथ आपके लिए क्या होगा, हमारे को इंसेप्ट कैसे करना है ऑडिट को, हमें ऑडिट को स्टार्ट कैसे करना है, ये हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, हाउ टू एक्चुअली इनिशिएट द ऑडिट। आप कैसे ऑडिट को अपने स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, ये मैंने
नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करना है आपके साथ। थर्ड सेगमेंट में मुझे आपके साथ डिस्कस करना है सर, यहाँ पर आई हैव टू डिस्कस इन द थर्ड सेगमेंट कि मेरे लिए क्या क्या वाटरफॉल या स्पिल ओवर इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या मेरे लिए स्पिल ओवर्स हैं, यानी कि आपका 2017 का इम्पैक्ट 2018-19 में कौन सी जगहों पे आएगा और उसको आपको कैसे डील करना है। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी लेता जाऊंगा आपको फोर्थ पार्ट में कि कौन सी चीजें आप ऑप्शनल छोड़ सकते हैं और कौन सी चीजें आपको भरनी ही हैं, यानी कि कंपलसरी हैं। इसके बाद हम रख सकते हैं सर फाइनली लास्ट में ओपन हाउस या क्वेरी सेशन। हम ओपन हाउस और क्वेरी सेशन इसके बाद लास्ट में रख सकते हैं। सो वॉट एवर माई डिस्कशन विल रिवॉल्व इज, यहाँ पर सबसे पहले मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर डूइंग द ऑडिट है, डूइंग द फाइनलाइजेशन है, यहाँ पे फॉर पर्पस ऑफ ऑडिट है। सर ये ऑडिट कौन सा है? इट इज टॉकिंग अबाउट जीएसटी ऑडिट। कौन सा ऑडिट? 2018-19 का ऑडिट, जिसकी डेट फिलहाल के लिए 30 सितंबर रखी गई है। छोटा सा एक पॉइंट शुरू करेंगे पहले क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में। हमारी एप्लीकेबिलिटी की बात करूंगा मैं सर, एप्लीकेबिलिटीज की बात करूंगा। एप्लीकेबिलिटी के अंदर कुछ चेंज है इस साल के लिए, मैं चेंजेस को कवर करता जा रहा हूं। आप एक स्लैब बना लेंगे सर, स्लैब बनाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2018-19 आपने स्लैब बना लिया होगा। इस स्लैब के अंदर आपको याद रखना होगा सर इस बार हमारे पास दो चीजें हैं, एक है 2 करोड़ की टर्नओवर, एक है 2 करोड़ की टर्नओवर, एक है 5 करोड़ की टर्नओवर। एक है 2 करोड़ की टर्नओवर, एक है 5 करोड़ की टर्नओवर। सर आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब होता है? पैन बेस्ड टर्नओवर, यानी कि एक पैन पे आपकी टर्नओवर कितनी है, चाहे जितनी ही रजिस्ट्रेशंस क्यों ना हो आपकी थ्रू आउट इंडिया, आपकी जिस जिस स्टेट में प्रेजेंस क्यों ना हो, सबकी टर्नओवर को जोड़कर जीएसटी की आपको देखना है कि ये 2 करोड़ है या 5 करोड़ है। सर अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो मैं अगर 9 और 9C की बात करूं तो आपके ऊपर 9C एप्लीकेबल नहीं होती, आपके ऊपर 9C एप्लीकेबल नहीं होती और 9 आपके पास ऑप्शनल होती है सर, ये आपने नोट कर लिया होगा। 9 इज ऑप्शनल, आपके लिए 9 ऑप्शनल है और 9C एप्लीकेबल नहीं होती। सर मेरे पास इस बार एक नया स्लैब और है, वो है 9 और 9C के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ की टर्नओवर का। सर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्लैब है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये स्टार लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की होगी तो आपके ऊपर 9 एप्लीकेबल है और 9C आज भी एप्लीकेबल नहीं है, आपको 9C नहीं भरने। आपके लिए 5 करोड़ की लिमिट कर दी गई है फॉर द पर्पस ऑफ 2018-19 का जो आप जीएसटी ऑडिट कर रहे हैं, यानी कि 9C को भर रहे हैं। ये एक नया स्लैब है मेरे लिए, ये 2017 में 18 में एग्जिस्ट नहीं करता था। अब बात करते हैं 5 करोड़ से ऊपर की। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो 9 और 9C दोनों आपके लिए एप्लीकेबल हैं। सर ये नोट कर लिया आपने कि 5 करोड़ से नीचे और 5 करोड़ से ऊपर में 9C की एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी का इशू आता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। चलिए सर मैंने एप्लीकेबिलिटी को डिस्कस कर लिया अब मैं कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख रहा हूं सर। सर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पर लिखने जा रहा हूं आपके पास। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है मेरे लिए, क्रिटिकल डिस्कशंस क्या होंगी, ये लिखना जा रहा हूं। सर मेरे पास जीएसटी के अंदर 2018-19 में देयर वर सर्टेन ऐसी चीजें जो कि स्टैट्यूटरी चेंजेस हुए थे, स्टैट्यूटरी चेंजेस हुए जो कि लीगल चेंजेस हुए, या फिर सर मेरे पास कुछ डेवलपमेंट्स आई लॉ के अंदर, डेवलपमेंट्स आई लॉ के अंदर। क्या डेवलपमेंट्स हुई सर? देयर वर जुडिशियल डेवलपमेंट्स और देयर वर सर बाय टाइम लर्निंग डेवलपमेंट्स, जो हमने सीखा सर। एक होता है लॉ में चेंजेस आए, एक होता है केस लॉज आए, और एक आता है जो हमारी मेच्योरिटी से हमारी थॉट प्रोसेस में डेवलप हुआ। सर कोई मुझे बता सकता है कि कोई ऐसी चीजें जो 2018-19 के अंदर आई हमारे लिए फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, जो 2017-18 में नहीं थी?
सर क्या आप चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके लिख सकते हैं या बता सकते हैं सर प्लीज? सर क्या आप पार्टिसिपेट करके ट्राई करेंगे कि हमारे पास क्या ऐसा था जो स्टैट्यूटरली चेंज हुआ 2017-18 में से लेकर 2018-19 में? कोई बता सकता है सर चैट बॉक्स में अनम्यूट करके? चलिए, मदान साहब ने लिखा फॉर्म में चेंजेस हुए। ठीक है, फॉर्म में चेंजेस हुए, ओके। और सर और कुछ चेंज हुआ हो, लॉ में कोई चेंज हुआ हो? वो प्रोसीजरल चेंज हो गया सर मदान साहब। कोई और चेंज हुआ है? सर फॉर्म में चेंजेस लिखे हैं एक, बाकी सब क्या सर कोई और चेंज हुआ है? सर कह रहे हैं बताइए, आप बताइए, आप ही बता दो क्या चेंजेस हुए हैं। चलो सर लिखिए सबसे पहले चेंज, इंपॉर्टेंट चेंज, दैट इज अ चेंज इन ई वे बिल। सर 2017-18 में हमारे पास ई बिल्स नहीं हुआ करते थे। 2017-18 में हमारे पास ई वे बिल का कॉन्सेप्ट नहीं था। पूजा जी कुछ बोलना चाहती हैं, प्लीज अनम्यूट कर ले पूजा जी। आई बिलीव पूजा जी कुछ बोलना चाहती हैं। पूजा जी ने हाथ रेस किया है, मुझे ऐसा लगा उन्होंने कुछ पूछना है। अगर पूजा जी आपको कुछ पूछना है आप अनम्यूट कर सकती हैं। ठीक है सर, हमारा सबसे पहला चेंज आया ई वे बिल। ई वे बिल कब से एप्लीकेबल हुआ सर? ई वे बिल एप्लीकेबल हुआ हमारे लिए थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, पूरे 12 महीने के लिए। सर मैं 2018-19 का ऑडिट कर रहा हूँ, मुझे क्रिटिकली ध्यान रखना पड़ेगा। 2018-19 में मेरे पास ई वे बिल का भी कॉन्सेप्ट था, जो कि मेरे पास 17-18 में एग्जिस्ट नहीं करता था। क्या सर आप लोगों को लगता है कि और कोई चीज भी नहीं आई थी, न्यू नई नई आई थी आपके लिए? हाँ सर, ये तो पहली चीज लिख दी हमने। दूसरी चीज नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, टीडीएस टीसीएस प्रोविजंस। सर ये टीडीएस टीसीएस प्रोविजंस जो थे, ये जीएसटी के टीडीएस टीसीएस प्रोविजन की बात करी जा रही है, ये इनकम टैक्स का टीडीएस टीसीएस नहीं है। इसके लिए एप्लीकेबिलिटी डेट लिख लीजिए सर, ये कब से एप्लीकेबल हुआ था? ये एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 से मेरा टीडीएस टीसीएस प्रोविजंस आ गए थे सर। ये मेरे लिए कितने महीनों के लिए हुआ सर पूरे ऑडिट की डिस्कशन में? ये मेरे लिए डिस्कशन में हुआ फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए ये चीज मेरे लिए वैलिड हो गई। फॉर 6 मंथ्स टीडीएस टीसीएस प्रोविजंस आर देयर इन माय ऑडिट पीरियड। ये मेरे ऑडिट के पीरियड में 6 महीने के लिए फॉल कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चीज क्या आई मेरी? नेक्स्ट चीज क्या आई मेरी? सर मेरे पास आया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक नया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मेरे लिए एप्लीकेबल हो गया। सर कौन सा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हुआ? गेस कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में। क्या आरसीएम एप्लीकेबल हुआ मेरे लिए? क्या कोई नया आरसीएम एप्लीकेबल हुआ था सर? ये बता देता हूं, ये एप्लीकेबल हुआ था 1 जनवरी 2019 से। कितने महीनों के लिए हुआ ये? सर ये मेरे लिए हुआ फॉर 3 मंथ्स। कौन सा ऐसा आरसीएम नया नया एप्लीकेबल हुआ था सर? सर कोई गेस कर सकता है? विच आरसीएम गॉट एप्लीकेबल इन 2018-19? चैट बॉक्स में लिखिए सर जल्दी से। सर आप जितना चैट बॉक्स में लिखेंगे उतना हमारा पार्टिसिपेशन हाई होगा, उतना ही ज्यादा बेटर समझ आता जाएगा सर। सो काइंडली ट्राई एंड राइट इट इन चैट बॉक्स। बताइए। पवन सर कह रहे हैं डायरेक्टर फी। सर ये मैं कहूंगा मेरे लिए लर्निंग्स थी, यहां पर लिखना चाहूंगा सर इसको मैं, डायरेक्टर फी वाले को। ये लॉ में चेंज नहीं आया कहीं सर। डायरेक्टर फी के ऊपर आरसीएम की क्लैरिफिकेशन आई थी सर। इसको इस वाले सेगमेंट में लिखेंगे, राइट वाले सेगमेंट में। और कोई सर थॉट प्रोसेस आरसीएम के ऊपर? कोई नया आरसीएम आया हो? जी राजेश जी, आपने लिख दिया है सिक्योरिटी सर्विसेज, यहां नोट कर लेंगे सिक्योरिटी
सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर आपका आरसीएम एप्लीकेबल हो गया था 1 जनवरी 2019 से। मैं एक एक सेगमेंट को अभी डेप्थ में उठाऊंगा सर कि मेरा इंपैक्ट फाइनलाइजेशंस और ऑडिट पे क्या पड़ेगा इसका। माय फोर्थ सेगमेंट इज, नोट करिए, चौथा सेगमेंट क्या था मेरे लिए, एक नया सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 इंट्रोड्यूस हो गया था मेरे लिए। एक नया सेक्शन 17(5) यानी कि ब्लॉक्ड क्रेडिट का जो सेक्शन था 17(5), ये नया आया था। नया किस दिन से आया था सर, नोट करेंगे, डेट नोट करेंगे इसकी, 1 फरवरी 2019 से। 1 फरवरी 2019 से ये कितने महीने के लिए रहा आपके पास, ये रहा सर 2 महीने के लिए। 1 फरवरी 2019 से आपका नया ब्लॉक्ड क्रेडिट रिप्लेस होके आ गया था। ठीक है, अब आगे सुनेंगे सर, आगे सुनते जाएंगे सर। मेरे लिए एक और डेवलपमेंट हुई लॉ के अंदर। डेवलपमेंट क्या हुई, डेवलपमेंट हुई एम्प्लॉय से रिकवरी के बारे में। ये भी हमें थॉट प्रोसेस मिला कि फ्यूचर में कैसे करना है इसको। एम्प्लॉयज से आप जो रिकवरी करते हैं उस पे जीएसटी के इम्प्लीकेशंस हमने बाय समय के अनुसार समझे सर। हमें धीरे धीरे समझ आया क्योंकि ये समय के अनुसार ही समझ आया कि क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है आपको सर? यहां तक किसी को क्वेश्चन है, किसी को कोई सवाल है? सर सवाल इसलिए नहीं है, कहीं कहीं सर सो तो नहीं गए सर, बोरिंग तो नहीं लग रहा, सो तो नहीं रहे सर? नहीं सर, बढ़िया इंटरेस्टिंग है। चैट बॉक्स में लिखते भी रहे सर साइड बाय साइड, जिससे कि नींद खुली रहे सर सबकी। क्यों? क्योंकि हमें इन चीजों का ध्यान रखना है क्रिटिकली ऑडिट के अंदर। चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट लिखिए सर, शायद अब ये एक गेम चेंजर होगा। दैट विल बी आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज। ये भी हमें समय के अनुसार समझ आया कि कब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट लगता है और कब क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट लगता है। सर ये चीजें लोगों से मिस हो रही होंगी 100%। चलिए एक और इंपॉर्टेंट नया सेगमेंट लिखिए, क्या लिखेंगे सर? फोर्थ नई डेवलपमेंट क्या हुई हमारे पास? हमारे पास एक नई डेवलपमेंट हुई, क्या 2A में क्रेडिट दिखेगा, 2A में आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा मेरा 2018-19 के लिए। ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आप सबके साथ। अगर 2018-19 के 2A में क्रेडिट नहीं दिख रहा तो उसका क्या इंपैक्ट है, और अगर वो दिख रहा होता तो उसका क्या इंपैक्ट होता। चले आगे देखते हैं सर। मेरे पास यहां पर एक इंपॉर्टेंट नई और चीजें आई, क्या सर? 2017-18, 2018-19 मेरे पास स्पिल ओवर हुए कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने अगले साल में अवेल किया और कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने अगले साल में रिवर्स किया। ऐसे ही मेरे पास 2018-19 के अंदर भी हुआ, कितना आईटीसी मैंने अगले साल में इसके 18-19 के अंदर 19-20 में अवेल किया और कितना मैंने 19-20 का, सॉरी 18-19 का आईटीसी कितना 19-20 में रिवर्स किया। ये भी एक मेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज रहेगा इस बार ऑडिट के अंदर, ये भी मेरे पास चैलेंज रहेगा। साइड बाय साइड सिमिलर मेरे पास एक चैलेंज क्या रहेगा, कितना टैक्स अगले साल में पे हुआ और कितना टैक्स अगले साल में एडजस्ट हुआ। ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा डिस्कशन का। साथ ही साथ कितना मेरा टैक्स यहाँ पर भी 18-19 का 19-20 में पे हुआ और कितना टैक्स मेरा 18-19 का 19-20 में एडजस्ट हुआ। ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है फॉर माय ऑडिट पर्पसेस। ठीक है सर, यहाँ तक भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सारा जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि और कुछ भी ऐसा होगा जो मेरे लिए क्रिटिकल होगा फॉर दी ऑडिट दिस ईयर? क्या आपको लग रहा है कि कुछ और भी क्रिटिकल होगा? किसी को नोट करना रह गया तो वो प्लीज नोट कर लीजिए जल्दी से। कुछ और क्रिटिकल रह गया होगा मेरे लिए 2018-19 में तो बताइए, जो मैं मिस कर गया हूं। इफ यू वांट मी टू नोट इट डाउन, बताइए सर। कुछ लिखना तो नहीं है? जल्दी बताइए, आप लोगों ने नोट कर लिया है? आप लोगों ने नोट कर लिया है? जल्दी से चैट बॉक्स में यस और नो लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊं जिससे सर प्लीज। चलिए
यस और नो लिख दीजिए सर फास्ट। चलिए सर, मेरी पहली डिस्कशन पुलकित जी ने लिख दिया कि मैंने कर दिया है। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पवन सर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, शुभम सर, प्रवीण सर, सबने लिख दिया है। ये तो बता दीजिए सर, बोरिंग तो नहीं चल रहा है, इंटरेस्टिंग चल रहा है? आगे बढ़ रहे हैं सर। पहला प्रोविजन लिखने जा रहा हूँ, मैं टिक करता जाऊंगा यहाँ पर। सर मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आएगा डिस्कशन ई वे बिल के लिए, पर मैं ई वे बिल से स्टार्ट करने से पहले शुरू करना चाहूंगा सर टीडीएस और टीसीएस के ऊपर। टीडीएस और टीसीएस के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा सर इंपॉर्टेंटली। पहले सर टीडीएस टीसीएस मेरा सेक्शन 51 और सेक्शन 52 ऑफ जीएसटी एक्ट में कवर किया जाता है। सर टीडीएस टीसीएस मेरा 51 और 52 में कवर किया जाता है, एंड दैट इज कवर्ड अंडर, ठीक है कीर्ति जी, थैंक यू, कवर किया जाता है सेक्शन 51 और 52 ऑफ माय जीएसटी एक्ट। सर टीडीएस के प्रोविजन कहते हैं कि अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी तो आपको गवर्नमेंट को आपका टीडीएस काटना है जीएसटी के अंदर। सर ये टीडीएस आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आप अपना क्लेम कर सकते हो, कैश लेजर में आपके आ जाएगा, ये पोर्टल से आपको क्लेम करना पड़ता है। इवन यू आर अलाउड टू एक्चुअली अप्लाई फॉर द रिफंड ऑल्सो। अगर आपका ये पैसा बच जाएगा तो आप इसका रिफंड भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा अलाउड है। आगे बढ़ते हैं सर, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नोट करने जा रहा हूँ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के साथ स्क्रीन पे नोट करने जा रहा हूँ। काइंडली कीप नोटिंग इट सर। यहाँ पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने को टीडीएस काटना था सर, आपको ऐसा लग रहा था सर टीडीएस एक थ्योरेटिकल प्रोविजन है, मैं सर थ्योरेटिकल प्रोविजन नहीं, इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करूंगा। ये मेरा 1 अक्टूबर 2018 से एप्लीकेबल हो गया था। सर लेटेस्ट से आपके पास टीडीएस की रजिस्ट्रेशन है, आपके पास टीडीएस की रजिस्ट्रेशन है, आप मतलब गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है, या आपके पास, मैं कहता हूं ध्यान से देखिए सर, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। आप एक एंटिटी हैं, आप एक गवर्नमेंट एंटिटी का काम करते हैं सर, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन है कहां पर, आपके पास 2 रजिस्ट्रेशन है सर। My one registration exists in state 1, my another registration exists in state 2. Let us example कि आपके पास 2 registrations हैं सर, आप गवर्नमेंट एंटिटी का काम करते हैं, आप गवर्नमेंट एंटिटी का काम करते हैं जिसको टीडीएस काटना होगा। आप एक गवर्नमेंट एंटिटी का काम करते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, आपका पैन एक ही है, आप दोनों का पैन एक ही है, यानी कि आपके पास 2 जीएसटी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। सर आवाज आ रही है सर? अब आ रही है सर। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आप लोगों के पास पैन एक ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग भी ऑफ हो गई होगी सर, ठीक है, आप लोगों के पास पैन एक ही एग्जिस्ट करता है, और हुएवर आपके पास यहाँ पर 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करती है। यू हैव रजिस्ट्रेशन इन 2 स्टेट्स, और यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम आई सर, आपने एक स्टेट 1 से आपने काम किया, स्टेट 1 से आपने काम किया गवर्नमेंट एंटिटी का, आपने बिलिंग करी, यहाँ पर कितनी आपने बिलिंग कर दी सर, 20 लाख रुपए की। आपने टैक्स इनवॉइस रेज किया सर स्टेट 1 से 20 लाख रुपए का, और आपने टैक्स इनवॉइस रेज किया स्टेट 2 से। एग्जांपल लिख लेंगे सर, इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकली आपको असेसमेंट में भी हेल्प करेगा। सर आपने स्टेट 1 से एक बिल रेज किया, और बिल रेज किया 20 लाख रुपए का, स्टेट 2 से आपने एक बिल रेज किया, और बिल रेज किया 10 लाख रुपए का। सर जब आप बिल रेज करने लगे तो आपको एक चीज रियलाइज हुई कि इस पे एग्जाम्पल ले रहा हूं सर, टैक्स बनता है 4 लाख रुपए का, यहां एग्जाम्पल ले रहा हूं टैक्स बनता है 2 लाख रुपए का। सर आपने इनवॉइसिंग कर दी यहां से 20 लाख रुपए की, यहां से इनवॉइसिंग कर दी 10 लाख रुपए की।
सर जब आप इनवॉइसिंग करने लगे तो आपने यहां से पेमेंट्स रिसीव की भी सोची मेरे को मिलेगा, गवर्नमेंट एंटिटी से गलती हो गई सर, गवर्नमेंट एंटिटी ने आपका टीडीएस काट लिया इस एंटिटी के ऊपर पूरा 30 लाख रुपए के ऊपर। सर यहाँ पर आपका टीडीएस कट गया पूरा 30 लाख रुपए के ऊपर, आपका टीडीएस यहाँ पर पूरा कट गया सर ऑन द अमाउंट ऑफ 30 लाख रुपीज। प्रॉब्लम क्या हुई सर, यहाँ आपको कहीं पर भी जीएसटीआर 7 जब वो अपनी फाइल कर रहे थे वो अमेंड भी नहीं हो सकती थी। सर मुझे नहीं पता आपने ये प्रैक्टिकली केस देखा या नहीं देखा, पर आपको ये प्रैक्टिकली केस मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑडिट ऑल्सो। सर आप टीडीएस और टीसीएस के साथ जब रिकंसिलिएशन कर रहे होंगे तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट एंटिटी ने टीडीएस जिस एंटिटी पे काटना था उस पे नहीं काटा और जिस एंटिटी पे नहीं काटना था उस पे गलत काट लिया सर, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि आपकी जीएसटीआर 1 के अंदर, जीएसटीआर 1 के अंदर टैक्सेबल वैल्यू दिख रही होगी 10 लाख, टैक्स दिख रहा होगा 2 लाख। यहां जीएसटीआर 1 में आपके क्या दिख रहा होगा, यहां दिख रहा होगा अगेन 20 लाख और आगे 4 लाख। लेकिन जब आप टीडीएस की रिकंसिलिएशन करेंगे जीएसटी वाली, जब आप टीडीएस के डेटा से कंपेयर करने जाएंगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा सर, यहां पर आपको दिखेगी टर्नओवर 0, टैक्स 0, और यहां पर टर्नओवर दिखेगी 30 लाख और टैक्स दिखेगा 6 लाख का। सर यहाँ पे आयरनी बात क्या है, असेसिंग ऑफिसर दोनों के अलग होते हैं, यहाँ पर दोनों के असेसिंग ऑफिसर अलग होंगे। सर यहाँ का स्टेट 2 का एओ कहेगा आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट एंड आफ्टर द ऑडिट, आपके लिए एज एन ऑडिटर ये क्रिटिकल फेज फंस जाएगा सर। वो कहेगा कि यहाँ पर सप्रेशन ऑफ टर्नओवर है, सप्रेशन ऑफ टर्नओवर होने की वजह से वो सिंपली आपके साथ बोलेगा यहाँ पर क्या, वो कहेगा सर ये तो सप्रेशन ऑफ टर्नओवर है भाई, व्हेन इट इज अ सप्रेशन ऑफ टर्नओवर यहाँ पर मैं आपका सेक्शन 74 के अंदर टैक्स इवेजन का डिमांड रेज कर सकता हूँ। वेयरएज यहाँ का असेसिंग ऑफिसर ऐसा कुछ नहीं कहेगा, बट आपके लिए अब ये एक ऑडिट का ऑब्जर्वेशन और पॉइंट बन जाएगा सर, आपके लिए अब ये एक ऑडिट का पॉइंट और ऑब्जर्वेशन बन गया सर कि मेरे को इसको कैसे दिखाना है। मुझे सर हल्का सा गाइड करिए, क्या करेंगे आप इसमें अब सर, व्हाट विल यू डू सर, अब आप इसमें क्या करेंगे जैसे बताइए सर, कोई आइडिया है, कोई थॉट प्रोसेस, कोई विजन, आप लोग इसमें क्या करते सर अगर ऐसा होता। यहाँ हम करेंगे पार्ट बी पॉइंट नंबर 5 ऑफ जीएसटीआर 9C का करना पड़ेगा सर। आप एक कमेंट लिखना है भाई मेरे को इसका कोई टैक्स इम्पैक्ट नहीं है, इसका कोई टैक्स इम्पैक्ट नहीं है, हाउएवर एज पर द काउंटर सर आपको एक एमआरएल भी चलना पड़ेगा, आपको एक मैनेजमेंट लेटर लेना होगा। सर sorry to interrupt you sir, not audible। यहाँ पर और मुझे ये यहाँ पर शो करना पड़ेगा, मुझे शो करके चलना पड़ेगा सर। sorry to interrupt you sir, not audible sir clearly। सर आवाज आ रही है, आवाज अब आ रही है सर, प्लीज रिपीट दिस बिकॉज नॉट ऑडिबल। अच्छा मैं आपसे बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर आपको एक कमेंट लिखना पड़ेगा, जीएसटीआर 9C के अंदर भाई इसका कोई टैक्स इम्पैक्ट नहीं है, हाउएवर असेसी से आपने एक रिप्रेजेंटेशन लेटर भी लेके चलना है सर साइड में अपनी। सर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आपकी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करेगी कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन करी जा रही है या नहीं करी जा रही, ठीक है सर। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लेटर मत लेना भूलिएगा कि भाई इसका कोई टैक्स इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पर लोग भूल रहे हैं सर इस चीज को, ठीक है सर। आप लोगों के सवाल है यहाँ तक सर, आप लोगों का कोई सवाल यहाँ पे, अरोड़ा साहब कोई सवाल? नहीं सर कोई सवाल नहीं सर इसमें।
बस सिंपली लिख कर देना उसमें 9C में बस। सर आपको 9C में कमेंट लिखकर चलना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक कि है भाई, क्योंकि सर ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन है। राजेश जी, अब आवाज आ रही होगी सर? ठीक है, हाँ यस सर, ऑडिबल सर, ऑडिबल। मैंने इसको 1 मिनट के लिए पॉइंट को अभी टिक करके चल रहा हूँ सर। मैं अभी रिकंसिलिएशंस या ईवे बिल के ऊपर नहीं आया हूँ। मैं अब आपके ऊपर एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट रखने जा रहा हूँ सर। यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट रखने जा रहा हूँ और मुझे आप सबकी इसमें ना सर थोड़ी सी मदद भी चाहिए होगी, जवाब चाहिए होगा सर आपसे। आप सबने देखा है कि 1 जनवरी से मैंने लिखवाया है 2019 से एक आरसीएम एप्लीकेबल हो गया, और वो आरसीएम कौन सा है? सिक्योरिटी सर्विसेज वाला। वो कौन सा आरसीएम है? वो आरसीएम है सिक्योरिटी सर्विसेज वाला। एक बारी के लिए मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि उसके अंदर कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। एक बार वो देखेंगे सर मेरे साथ स्क्रीन पे, वो देखेंगे सर मेरे साथ स्क्रीन पे। ये देखिए सर, मैंने आप सबके सामने स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, ये नोट भी कर लेंगे, ये स्लाइड में शेयर भी कर दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है सर चीज। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो थ्रू आउट माई डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। मैंने बोला सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर 1 जनवरी 2019 से एक आरसीएम एप्लीकेबल हो गया सर। सर ये क्या बोलता है? ये कहता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, प्लीज फिर से देखेंगे, आई एम सेइंग अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर जी, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट वेदर, ध्यान से देखिए सर, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, हर जगह सर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के कॉम्बिनेशन बनाए मैंने। सर कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एक चीज दिखेगी, यहाँ पर कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एक चीज क्या दिखेगी सर? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट वेदर रजिस्टर्ड और वेदर अनरजिस्टर्ड। सर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट वेदर रजिस्टर्ड और वेदर अनरजिस्टर्ड, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट वेदर रजिस्टर्ड और वेदर अनरजिस्टर्ड। अगर ये सप्लाई करता है किसको सर? अगर ये सप्लाई करता है एक रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन को। फिर से नोट करेंगे सर, अगर ये नोट करते हैं रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन को। सर ये किसको सप्लाई कर रहा है? ये सप्लाई कर रहा है रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है सर, इट इज सप्लाइंग टू अ रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन, देन ओनली यू हैव आरसीएम एप्लीकेबिलिटी, then only you have RCM applicability। सर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट किसी गवर्नमेंट के लिए रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि टीडीएस की रजिस्ट्रेशन जिसने ले रखी हो या जिसने कॉम्पोजिशन की रजिस्ट्रेशन ले रखी हो, उसको सप्लाई कर रहा है, तो रिवर्स चार्ज नहीं है सर। ये प्लीज नोट कर लेंगे, तो रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं है सर। रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी कब है? ओनली इफ यू आर सप्लाइंग अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन। जीएसटी में जो रेगुलरली रजिस्टर्ड होगा उसी के लिए यहां पर ये आरसीएम एप्लीकेबल होता है। सर अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये सर सिक्योरिटी सर्विसेज बोला गया है, ये मैन पावर सर्विसेज नहीं है सर। सर्विस टैक्स के अंदर था ना कॉन्सेप्ट मैन पावर सर्विसेज का, ये मैन पावर सर्विसेज नहीं है सर। ये खाली और खाली सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करता है। खाली सिक्योरिटी सर्विसेज के रिलेशन में यहाँ पर हमारी डिस्कशन घूम रही है। इट इज ओनली रिवॉल्विंग टुवर्ड्स सिक्योरिटी सर्विसेज। चलिए अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को अब प्रैक्टिकली मुझे आप हेल्प करेंगे, और ये चीज आप लोगों के पास प्रैक्टिकली होगी। काइंडली नोट करिए सर एक पॉइंट। सर एक सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर है, एक सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर है, ये आपका असेसी है सर, ये आपका असेसी है सर। ये एक अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर है, लेफ्ट वाला सर। राइट वाला आपका असेसी है, एंड इट इज रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन, इट इज अ रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन। फिर से नोट कर लेंगे सर, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर, योर असेसी इज अ रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन। सर इसने एक सर्विसेज दी, सिक्योरिटी सर्विसेज की इसको, और सर्विस दी कब? 2 फरवरी 2019, यानी कि तब मेरा आरसीएम एप्लीकेबल हो चुका था सर, तब मेरा आरसीएम एप्लीकेबल हो चुका था। सर प्रैक्टिकल पॉइंट है बहुत ज्यादा, प्लीज मैं थ्योरेटिकल नहीं घुमा रहा सर डिस्कशन को,
इसलिए मैं प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, ये ऑडिट में आपको पॉइंट मिलेगा सर। सर यहाँ पर इसने सर्विसेज दी 1 लाख रुपए की और इसने 18,000 रुपए टैक्स भी लगा दिया और 1,18,000 रुपए का बिल रेस कर दिया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। इसने फॉरवर्ड चार्ज में बिल रेस कर दिया। सर इसने फॉरवर्ड चार्ज में जैसे ही बिल रेस करा, अब मेरे लिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये आने लगी कि भाई साहब जब ये एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज का बिल हुआ तो इसको दोनों को अवेयरनेस ना होने की वजह से इसने इसको पेमेंट भी कर दी। पेमेंट कितनी कर दी सर? 1,18,000 रुपए की। इसने इसको 1,18,000 रुपए पे भी कर दिया। सर ये हो गई क्रिटिकल बात। अब इस दोनों अवेयर नहीं थे रिवर्स चार्ज के बारे में और दोनों ने फॉरवर्ड चार्ज ट्रीट करते हुए एक ट्रांजैक्शन को डील कर लिया। यहां पर इसने क्या किया? सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर ने 18,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा भी कर दिए। इसने गवर्नमेंट को जमा भी कर दिए सर। और यहाँ आपके असेसी ने इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया। इसने 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल कर लिया। अब आज की तारीख, आज की तारीख क्या है सर? सर आज की तारीख आई 19 सितंबर 2020। सर 19 सितंबर 2020 को जब आज हम खड़े हैं ऑडिट करने के लिए, तब आपको ये ट्रांजैक्शन नजर में आई सर। मुझे सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे बताइए आप एज एन ऑडिटर इसका क्या करेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? मैं बहुत प्रैक्टिकल चल रहा हूँ इसमें ऑडिट में। सर मेरे को आपने चैट बॉक्स में बताना है, चैट बॉक्स में बताइए। अनम्यूट करके बताना है, अनम्यूट करके बताइए सर। व्हाटएवर कंफर्टेबल टू यू आप मुझे बताएंगे सर। इसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस होगा? हाउ विल यू एक्चुअली प्रोसीड विद दिस? सर नोट करके दे देंगे 9C में, और रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के नाम पे डिमांड रेज नहीं करेंगे। ओके, बीआरसी नहीं भरवाएंगे। और ठीक है, पुलकित सर कह रहे हैं मैं डिमांड नहीं रेज कराऊंगा इस पे। बिल्कुल ठीक है पुलकित जी, मैं भी एग्री हूँ इस बात से, क्योंकि डिमांड तो रेज होगी नहीं सर, क्योंकि ऑलरेडी पे कर दिया है। ओके, हाँ जी सर। और कोई व्यू सर? और 9C में कमेंट दे देंगे उसमें। अच्छा, आप रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का कमेंट देंगे सर? हाँ बिल्कुल, 9C में कमेंट दे देंगे सर। ठीक है, और कोई व्यू सर? और कोई व्यू, किसी का कॉन्ट्रास्टिंग व्यू, या सब इससे एग्री कर रहे हैं? किसी को अनम्यूट करना है सर? प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। राजेश जी कह रहे हैं आईटीसी विल गेट रिवर्स्ड। राजेश जी आईटीसी रिवर्स क्यों करा रहे हो सर? एक बार बताएंगे सर, राजेश जी आईटीसी क्यों रिवर्स करा रहे हैं? मैं अनम्यूट करता हूँ मैम को। एक मिनट सर, एक मिनट अनम्यूट। अच्छा मैम, रानी जी है क्या? ओके बताइए, एक बार अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। तो उससे क्या होगा, डिस्कशन में कोई और पॉइंट किसी का निकल रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। राजेश्वरी जी अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। हाँ जी बोलिए। सुरेंद्र जी आपका कोई पॉइंट? हेलो, हाँ जी बोलिए। जी जी मैम, आवाज आ रही है मैम, बताइए। मैम कह रही हैं आईटीसी रिवर्स करना होगा इसका। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक बार आप रिपीट करेंगे? जी आ रही है मैम। आप आ रही है। आई बिलीव कोई टेक्निकल इशू है मैम के एंड पे। मैं मान के चलता हूँ मैम ने कहा आईटीसी रिवर्स करना है, ठीक है? हो गया मैम। हाँ सर, कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। मैम जैसे ही अनम्यूट हो जाए या बात कर सके मैम, आप ट्राई करिएगा, ठीक है? मुझे सर और कोई बता सकता है कि इसमें, सर मेरे पास पुलकित जी ने बोला, अरोड़ा जी ने भी कहा कि भाई क्रेडिट रिवर्स कर दे, और सॉरी रेवेन्यू न्यूट्रल रहेंगे हम, ठीक है? हम कोई कमेंट लिख देंगे। सुरेंद्र जी आपका कोई व्यू पॉइंट? किसी का कोई और व्यू पॉइंट? चलिए मान के चल रहा हूँ सब अभी सोच रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन आएगी या नहीं आएगी। शुभम जी कह रहे हैं नो टैक्स इवेजन सो विल हैव अ डिस्क्लोजर। शुभम सर आप भी इसका मतलब रेवेन्यू न्यूट्रल पे ही बिलीव कर रहे हैं? मतलब आप भी कहना चाहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के हिसाब से
ओके है, हम सिर्फ डिस्क्लोजर भी ना लिखें। सर मेरी छोटी सी बात समझिए सर, छोटी सी मेरी बात समझिए। अगर सब कुछ सर रेवेन्यू न्यूट्रल ही होता जीएसटी में, तो फिर तो सर कुछ भी कंप्लायंस करने की जरूरत ही नहीं है सर हमें। सर मैं टैक्स आपको दूंगा, आप जमा कर देंगे और वो आगे चला जाएगा। अंकित जी आए हैं कंट्रास्टिंग ओपिनियन के साथ, और अंकित जी कह रहे हैं टैक्स हैव टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज। अजय जी कह रहे हैं कि आरसीएम एप्लीकेबल था और आईटीसी नहीं लेना चाहिए था। चलो सर, अब इस पे आ रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन लोगों के। अब मेंबर्स इस पे कुछ ना कुछ चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन भी हो सकता है, इसमें कुछ डिफरेंस भी आ रहा है हमारे थॉट्स का। ठीक है, चलो सर मैं अब आपसे कुछ पूछता हूं। आप कह रहे हैं अगर सब कुछ ही रेवेन्यू न्यूट्रल है सर, एवरीथिंग इज रेवेन्यू न्यूट्रल अरोड़ा साहब, तो फिर आप एक असेसी से कोई सामान खरीदने जाओ, ठीक है, उसके पास टैक्स लगाता है वो 18%, ठीक है, उसके पास खूब सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके पास पाइल अप हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप उससे सामान खरीदते हो 18% वाला, और आप जो सामान खरीद के ये सामान बेचते हो तो आपको टैक्स जमा करना पड़ता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यू हैव टू डिपॉजिट। ठीक है सर, आपने इसको क्या बोला, तेरे को क्या फर्क पड़ेगा, तेरे पास तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, तेरे को क्या फर्क पड़ेगा, तेरे पास तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, एक काम कर मेरे भाई, ये 18 ना लगा और 28% लगा दे, और 28 ही गवर्नमेंट को जमा भी कर दियो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करके। अरोड़ा साहब, आप पुलकित जी कुछ बोल रहे हैं सर? हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ सर नहीं, ये रिवर्स करके पे ही करना पड़ेगा क्योंकि कैश में पे होता है ना आरसीएम। तो अब आपका जो जी पॉइंट सर, आपने पुलकित रखा सर है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा था? हाँ जी, समझ गया सर। सर यहाँ पर रेवेन्यू न्यूट्रलिटी को बेस नहीं लिया जा सकता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं लिया जा सकता? अल्टीमेटली सर अगर आपने सोचा कि रेवेन्यू न्यूट्रल है तो सर यहाँ पर डिफिकल्टी ये आएगी सर, फिर तो पूरा टैक्स ही रेवेन्यू न्यूट्रल है जीएसटी का, फिर तो आप कोई कंप्लायंस अपनी मर्जी से चलाओगे। इसलिए यहाँ पर ये पैसा हो सकता है कैश में जमा ना हुआ हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जमा हो गया हो। तो पुलकित जी जैसे आपने भी एड्रेस कर दिया इसको, इट हैज टू बी पेड नाउ। ठीक है पुलकित सर, अब पुलकित कहते हैं राइट सर। कि ये पैसा आपने का जमा तो होना है सर, क्या इसकी लायबिलिटी एज एन ऑडिटर आप DRC 03 में पे कराओगे? मुझे ये बताइए पुलकित सर। बिल्कुल करवाएंगे सर। इसका इनपुट ले लोगे? इनपुट अगर टाइम के अंदर होगा तो ले लेंगे सर। सर आज बताओ ना, आप ले पाऊंगा इसका? ये 2018-19 की गलती है। आज तो नहीं ले सकता सर मैं। सर मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये क्रेडिट का लॉस हो जाएगा और बिल्कुल जमा सर। भी कराऊंगा मैं, जमा और भी जो कर ऑलरेडी कर रखा है जमा वो जमा ही रहे, ऑलरेडी वो डिपॉजिटेड रहेगा। क्या डबल टैक्सेशन नहीं हो गई पुलकित सर? हो गई सर। तो पुलकित सर ने मान लिया है डबल टैक्सेशन को। मुझे बताइए सर और कोई वे आप लोगों को सूझ रहा है सर इसका, या मैं वे बताऊं? सर सब कह रहे हैं एक बार आप भी डिस्कस कर लो क्या वे होगा। इसमें आपकी ट्रांजैक्शन दो हिस्सों में बटी होगी, प्लीज नोट करिए, आपकी ट्रांजैक्शन दो हिस्सों में बटी होगी। आइदर यू आर स्टिल रेगुलरली डीलिंग विद द पार्टी, यानी कि आप आज भी जिस दिन ऑडिट कर रहे हैं उस दिन भी आप इस पार्टी के साथ अगर काम कर रहे हैं तो देयर विल बी अ सेपरेट सेट ऑफ ट्रीटमेंट व्हिच आई विल डिस्कस। और अगर आपने इसके साथ ट्रांजैक्शन बंद कर दी है, यानी नो डीलिंग, अगर आपके पास इसकी कोई डीलिंग नहीं है तो आप फिर टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट रखेंगे मेरे साथ, फिर टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट रखेंगे। कैसे होगा सर? ध्यान से देखिए सर, अगर आप इसके साथ आज भी रेगुलरली डील करते हैं, अगर आप आज भी इसके साथ रेगुलरली डील करते हैं तो योर ट्रांजैक्शन हैज टू बी डेल्ट इन अ मैनर। देखिए ध्यान से, आपको 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा ट्रांजैक्शन, आपको 4 स्टेप लेने पड़ेंगे सर, आपको 4 स्टेप लेने पड़ेंगे सर। क्या?
सर पहले तो आपको सबसे पहले उसको 18,000 रुपए को, उस 18,000 रुपए को आपको कैश में आरसीएम डिपॉजिट करना पड़ेगा। सर आपको ये कैश में आरसीएम डिपॉजिट करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। आप ये कैश में आरसीएम डिपॉजिट करेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट चीज आप क्या करेंगे, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट चीज आप क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। वट एवर 18,000 रुपए आपने को एक्स्ट्रा दिया हुआ था, वो 18,000 रुपए जो आपने सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर को पे कर रखा है, ट्रीट इट एज एन एडवांस। आप उसको एडवांस की तरह ट्रीट करिए सर, आप उसको एडवांस की तरह ट्रीट करिए और आज की पेमेंट में डिडक्ट कर लेंगे सर। ठीक है, मैं आपका लॉस नहीं होने दूंगा सर, इसके अंदर मैं आपका लॉस नहीं होने दूंगा। कृपया करके नोट करते रहें सर, साइड बाय साइड। सर नोट कर रहे हैं जी? चलिए ये देखेंगे सर। अब आपने थर्ड चीज क्या करनी है, आपने तीसरी चीज क्या करनी है, ये भी नोट करिए सर। आपने जो उस सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर ने गवर्नमेंट को फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स जमा किया हुआ है, वो उसका रिफंड क्लेम करेगा। किसमें? एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर। सर वो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर उसका रिफंड क्लेम करेगा। एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में उसका रिफंड क्लेम करता जाएगा सर। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होगा सर? चौथा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर? सर आप लोगों को आवाज आ रही है? अरोड़ा साहब, पुलकित जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। चौथा पॉइंट क्या करना है सर आपको? फोर्थ पॉइंट, आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, ऑलरेडी अवेल्ड, सर आपको इस पे कोई एक्शन नहीं लेना सर, नो एक्शन। ये इनपुट लिए रखेंगे आप। सर क्या आपको टैक्स ट्रीटमेंट समझ आया जो मैंने बताया एज एन ऑडिटर? सर क्या आपको टैक्स ट्रीटमेंट समझ आया एज एन ऑडिटर मैंने जो सजेस्ट किए? सर आर यू ओके विद दिस? मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्क्रीन देखेंगे यहाँ पर। भाई साहब, जो ये आपने 18,000 रुपए का इनपुट ले रखा है, इसके लिए आप कुछ मत करो, इट्स ऑलरेडी ओके। सर ये जो 18,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किया है, इसको आप एडवांस ट्रीट करो। ठीक है सर, यहां पर क्रिटिकल बात यह आएगी, जो 18,000 रुपए इसने गवर्नमेंट को दिया है, ये इसका रिफंड क्लेम करेगा सर। और आपने 18,000 रुपए कैश में जमा करना था, वो अब आपने जमा कर दिया और आपने उसको इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट भी कर दिया। सर आर यू ओके विद दिस? सर आर यू ओके विद दिस, या आपको कोई प्रॉब्लम है सर इस ट्रीटमेंट में? बताएं सर। सर चैट बॉक्स में लिखिए ओके, या सर कोई और डिस्कशन करनी है इस पे? पुलकित जी ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। आप ठीक है सर? राधिका जी, इस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आप? इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना ले लिया, वो आपको अलाउड था। अब बस आपने कैश में जमा करना था, वो कर दिया ना मैंने। ठीक है, तो राधिका जी ने कहा ठीक है, अंकित जी ने कहा ठीक है, और मेरे को पुलकित जी ने भी कह दिया ओके है सर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सर टेल मी द टैक्स ट्रीटमेंट इफ वी आर नॉट डीलिंग विद दैट पार्टी नाउ। अगर हम उस पार्टी के साथ डीलिंग नहीं कर रहे तो क्या करूं? सर तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अगर आप उस पार्टी के साथ अब डीलिंग नहीं कर रहे, अब आप उसके साथ कोई नहीं है, तो आपको मात्र सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं सर, तब आपको रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का केस लेना पड़ेगा। और सर उस केस में हो सकता है कि वो आपसे इंटरेस्ट मांग लें, बट आप कुछ नहीं करेंगे, फिर एक एज एन ऑडिटर कमेंट मेंशन करके चलेंगे इन योर 9C। कहां पर? पार्ट बी पॉइंट नंबर 5 के अंदर एक कमेंट मेंशन करके चलेंगे अबाउट योर दिस एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर आरसीएम एंड टेकिंग रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एज अ बेस। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं जमा करा भी दूंगा तो वो रिफंड नहीं ले पाएगा, मैं एडवांस नहीं ट्रीट कर पाऊंगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगी।
उस केस में आपने जो कर दिया सो कर दिया, आप उसका बेस लेते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे अब और कुछ। ठीक है सर, नोट कर लिया? नोट कर लिया सर, आगे बढ़े? जी सर, आगे बढ़ जाते हैं। सर आपको समझ आ रहा है कि ऑडिट क्रिटिकल है इस बार का, ऑडिट क्रिटिकल है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा ट्रांजैक्शंस का। सर ये ट्रांजैक्शन समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे को अब मैंने आपके साथ आरसीएम पे एक चर्चा करी, मुझे अब आपके साथ आरसीएम के ऊपर एक और चर्चा करनी है। यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन और करनी है। क्या है सर वो? सर अगर 2018-19 के अंदर एक आरसीएम पे करना था, लेट अस सपोज 5 लाख रुपीस का, 5 लाख रुपए का आपको एक आरसीएम डिपॉजिट करना था और वो नहीं हो रखा। सर आज है 19 सितंबर 2020, आपको वो आरसीएम डिपॉजिट करना था, ये आरसीएम डिपॉजिट नहीं हो रखा। मुझे सिर्फ क्लियरली आप एक बात बता दीजिए, जो ये आरसीएम डिपॉजिट नहीं हो रखा है सर, जो ये आरसीएम डिपॉजिट नहीं हो रखा सर, इसका आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी योर एक्शन एज एन ऑडिटर? सर मुझे बताइए, एज एन ऑडिटर इसका आप क्या करेंगे? प्लीज फास्ट बताएंगे सर। सर प्लीज बताएंगे क्या थॉट है आपका इस पे? सर विदाउट एंड डाउट डिपॉजिट तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट ले लोगे? और इनपुट आरसीएम का पेमेंट के बाद ले तो लेना चाहिए सर, पर लो मना करता है। आप क्या थॉट ले रहे हो सर? मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए सर, लो ने मना कर दिया तो। अच्छा, सर कह रहे हैं इनपुट नहीं लूंगा लेकिन टैक्स जमा करा दूंगा, ठीक है, यही कह रहे हो आप? जी सर। ठीक है, एक रिव्यू मेरे पास ये आया कि सर टैक्स जमा करा दो डीआरसी में और उसको उसमें मत लो सर, क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट में। ठीक है सर, एक ये व्यू पॉइंट भी अवेलेबल है। मैं नीचे 3-4 ऑप्शन लिखता हूँ सर, मैं 3-4 ऑप्शन लिखता हूँ, मुझे बताना सर आपको उसमें से क्या बढ़िया लग रहा है सर। मैं कह रहा हूँ एक आरसीएम की लायबिलिटी थी, आपको डिपॉजिट करनी थी, आपने नहीं करी, तो आपके पास यहाँ पर मैं नीचे 3-4 ऑप्शन लिख रहा हूँ सर। या तो आप इसको डीआरसी 3 में जमा करिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट मत लो। दूसरा ऑप्शन, डीआरसी 3 में जमा करो, इंटरेस्ट भी जमा करो और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। ठीक है। तीसरा ऑप्शन, सर आप डीआरसी 3 में जमा करो, इंटरेस्ट भी जमा करो और इनपुट टैक्स क्रेडिट मत लो। ठीक है। चौथा ऑप्शन, आप इसको आज की करंट 3B में पे करो, ठीक है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट मत लो। फिफ्थ ऑप्शन, आप इसको करंट 3B में पे करो और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लो। सिक्स्थ ऑप्शन, आप इसको करंट 3B में पे करो, इंटरेस्ट भी पे करो और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। सर सेवेंथ ऑप्शन है नो एक्शन, आप कुछ मत करो, ओनली कमेंट लिखो। एट्थ ऑप्शन एनी अदर, आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा हो सर, मुझे बताइए चैट बॉक्स में लिख कर। सर अब हम मेजॉरिटी देखते हैं सर, लोग थॉट किसकी तरफ ले रहे हैं सर। इज इट 1 2 3 4 5 6 7? शुभम जी कह रहे हैं इनपुट अवेलेबल नहीं है इसका। शिवानी जी कह रही है इंटरेस्ट लायबिलिटी विल बी पेड। शुभम जी कह रहे हैं टैक्स टू बी पेड विद इंटरेस्ट। अब बताइए सर कौन से ऑप्शन में जाओगे आप? 1 2 3 4 5 6 7, क्या लगता है सर? बताओ आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? अंकित जी ने लिख दिया सेकंड। ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है सेकंड के लिए और बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं दो थर्ड ऑप्शन के लिए, 2 ऑप्शन आए हैं। महेश जी ने 6th लिख दिया है।
एक ऑप्शन 6 के लिए आया है सर। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज ट्राई करिए सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर डिस्कशन है जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ। एक और 3 की तरफ आ गया, नागपाल जी ने 6 की तरफ बोल दिया है सर। मतलब आप देखिए अभी 3 और 6 के बीच घूम रहे हैं सर सब। मनोज जी ने 3rd बोला है, ज्यादातर लोग 3rd पे हैं। मदान साहब ने 2nd को बोल दिया है। ओके सर, अब आप देखिए क्या होगा। और कोई ट्राई करना चाह रहा है? ट्राई कर सकते हैं, दे वांट टू ट्राई। ओके चलिए, आई बिलीव सबने अपना अपना कमेंट दे दिया है कि इस पे क्या होना चाहिए उनके हिसाब से। सर अब आप यहाँ पर एक सेक्शन को नोट कर लेंगे प्लीज। मैं अब आपके साथ लीगल रेफरेंस की बात करूंगा, मैं लीगली बात करूंगा, ठीक है? और शायद यहाँ पर भी आपके लिए कुछ गेम चेंजर हो। सर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2, और आपको साथ साथ रीड करना होगा प्रेस रिलीज जो कि आई थी 3 जुलाई 2019 को, जो कि आई थी कब? 3 जुलाई 2019 को। ये मेरी प्रेस रिलीज आई थी भाई साहब 3 जुलाई 2019 को। इसका था वो पॉइंट नंबर जी, पॉइंट नंबर जी फॉर गोवा। सर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 भाई साहब मुझे कहता है आप 4 कंडीशंस को पूरा करो और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। आप 4 कंडीशंस को पूरा करिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर लीजिए। सर इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। यू शुड बी इन अ पोजेशन ऑफ अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट दैट इज टैक्स इनवॉइस। सर सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन क्या होती है मेरे पास? सर सेकंड कंडीशन क्लियर ये कहती है आपको सप्लाई रिसीव्ड होनी चाहिए। आपको सप्लाई रिसीव्ड होनी चाहिए। यू शुड हैव रिसीव्ड सच सप्लाईज। आपको सप्लाई रिसीव हुई होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में वो क्या कहता है सर? टैक्स शुड हैव बीन डिपॉजिटेड। आपका टैक्स डिपॉजिट हुआ होना चाहिए। योर टैक्स शुड हैव बीन डिपॉजिटेड। आपके टैक्स का पैसा डिपॉजिट हुआ होना चाहिए टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश और इन क्रेडिट। उनको किसी से मतलब नहीं है कि कैसे पैसा हो, पैसा गवर्नमेंट के पास गया होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या होती है? फोर्थ कंडीशन सेज रिटर्न शुड बी फाइल्ड ऑफ किसकी? रेसिपिएंट की। सर यहाँ रेसिपिएंट की रिटर्न की बात की जाती है चौथे पॉइंट। मेरा सिर्फ एकमात्र हम्बल सबमिशन है आप लोगों से। सर मैं यहाँ पे 3rd पॉइंट में कहता हूं टैक्स शुड हैव बीन डिपॉजिटेड। सर टैक्स शुड हैव बीन डिपॉजिटेड की कंडीशन सर सप्लायर पे भी लगती है और रिसिपिएंट पे भी लगती है। उसने कहा वेदर, उसने ये नहीं बोला किसको जमा करना है, उसने कहा सप्लायर या रिसिपिएंट। सर सप्लायर को जमा करना होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिसिपिएंट को जमा करना होता है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो whosoever is liable to deposit the tax should have deposited the tax to the government either in input tax credit or in cash. सर रिवर्स चार्ज का पैसा किस में जाता है? कैश में। मुझे एक मात्र आप छोटी सी बात बता दीजिए सर, जब आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पैसा जो कि आपको डिपॉजिट करना था एज अ रिसिपिएंट, वो आपने डिपॉजिट नहीं किया, यानी कि आपने अभी तक सी कंडीशन को पूरा कंप्लाई नहीं किया, 3rd कंडीशन को, क्या आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो बन गया था? क्या आपका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन गया था? सर वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट भाई साहब बना ही नहीं था। सर जिस दिन आप इसको जमा करते हैं ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिस दिन आप जमा करते हैं उस दिन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, उस दिन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है। सर यानी कि आरसीएम का पैसा व्हेनेवर यू डिपॉजिट इट बिकम्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, इट बिकम्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। लॉ कहता है पिछले साल का इनपुट आप अगले साल के सितंबर के बाद नहीं ले सकते। सर पिछले साल का अगले साल के सितंबर के बाद नहीं ले सकते ना सर, ये तो इसी साल का इनपुट है जो कि इसी साल में आप ले रहे हैं। जब वो इनपुट बना आपने तभी तो लिया, ये तो नहीं कि वो इनपुट पहले बन गया था। इसीलिए सर यहां पर अब आपको एक चीज नोट करनी होगी
सर अगर आरसीएम का पैसा है, सर अगर आरसीएम का पैसा है और अगर आपका, नोट कर लेंगे साथ में क्या लिख रहा हूं, प्लस आपका जो सप्लायर था वो अनरजिस्टर्ड पर्सन था, उस केस में 100% आप जब आरसीएम को डिपॉजिट करोगे तब आपको आईटीसी मिल जाएगा। आप जब डिपॉजिट करो आपको तब आईटीसी मिलेगा, आप जब डिपॉजिट करेंगे आपको तब आईटीसी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये क्यों कहा सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, इसीलिए भाई साहब। क्यों? क्योंकि उस केस में सेल्फ इनवॉइसिंग होती है। सर मैंने आपको ये भी बता दिया कि इनवॉइसिंग हुई नहीं थी तो सेल्फ इनवॉइसिंग तो आप ही को करनी होती है। अगर सेल्फ इनवॉइसिंग हो ही नहीं रखी तो उस केस में अब आपका क्या आरसीएम लगाना है सर? आपने जिस दिन जमा किया आप उस दिन ले लेंगे, बस इसमें आपने लेट डिपॉजिट का इंटरेस्ट जमा करना होगा साथ में। इसमें आपको लेट डिपॉजिट का इंटरेस्ट और साथ में डिपॉजिट करके चलना है सर। यानी कि कौन से ऑप्शन में हम फॉल कर गए? हम फॉल कर गए सर 6th ऑप्शन के अंदर। यस जी सर। सर कोई क्वेश्चन है किसी का? नागपाल सर? यस सर। कोई क्वेश्चन? नहीं कंफर्टेबल। ठीक है सर, इट्स ओके सर। सर ने कह दिया ओके, यानी कि एक हमारे पास ओके की वो आ गई है सर स्टैंप। हाँ राधिका जी, आपने, मुझे पता था अब आप ये क्वेश्चन पूछने वाली हैं कि भाई साहब ये तो बता दो कि आपने कहा सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड निकला तो क्या होगा? मैम उस केस में आपका पास रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन कहता है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस योर टाइम ऑफ सप्लाई इज ट्रिगर्ड। वहां पर भी आप एक क्लाइंट से अपने कॉल ले सकते हैं कि there can be a risk because time of supply has been triggered on the 61st day. However, still if you have a quantum, good quantum, you can litigate. आप लिटिगेट कर सकती हैं, ठीक है राधिका जी? उस केस में आप लिटिगेट कर सकती हैं। इट इज 100%, आप लॉ को पढ़ लीजिए पूरा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा सर इस केस में। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लियरली एविडेंटली इस केस में आपको मिल जाएगा, ठीक है? सर चैट बॉक्स में यस और नो लिख दिया है आपने, आगे बढ़े। साइड बाय साइड आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा सर, यहाँ पर आपने आरसीएम की चर्चा तो कर ली सर, आई बिलीव सब कंफर्टेबल थे इस आरसीएम सर। एक क्वेरी है सर। शिवानी जी प्लीज पूछिए ना। सर ये अभी जो आपने डिस्कस किया कि आरसीएम हमने पे नहीं किया तो हम 6th ऑप्शन पे जा सकते हैं, तो सर इससे पहले जो सिक्योरिटी वाला डिस्कस किया था वो भी तो हम मतलब अभी कैश में पे करके और अभी इनपुट ले लेते हैं कि सपोज हमने नहीं पे किया है। तो मैम मैंने आपको बिल्कुल मैम मैंने आपको बोला, सर आपने कहा था कि भाई अभी पे करो। अब आ रही है बस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। अब मुझे सर उसमें ना एसपी के अंदर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड में ना अब आरसीएम डिपॉजिट करा दो, कैश में इंटरेस्ट करा दो और इनपुट टैक्स क्रेडिट करा दो, यही कह रही है? हाँ जी आप हाँ ये वाला जी ऑप्शन भी चूज कर सकती हैं, ये वाला ऑप्शन चूज कर सकती हैं। हाउएवर मैंने आपको वो इतना लंबा चौड़ा ऑप्शन इसलिए बताया कि उसमें मैंने आपको जो ये आपको बोला कि भाई अगर आपसे आज उसकी रेगुलरली डीलिंग हो रही है
हाँ जी। आपकी आज भी अगर उससे रेगुलरली डीलिंग हो रही है तो माय सिंपल सबमिशन वुड बी कि आप वो 18,000 रुपए एडजस्ट भी तो करोगे ना जो उसको एक्स्ट्रा दे रखा है। सर आप एग्जांपल में 18,000 ले रहे हैं ना, दैट अमाउंट कुड बी वेरी हाई कि मतलब वो मे बी रिफंड वगैरह के लिए इशू करे कुछ, तो आई थिंक हाँ, तो मैंने इसीलिए आपको ये ऑप्शन बताया उसके बाद आज कि अगर आप इसको भी लेना चाहें और उसको रेवेन्यू न्यूट्रलिटी में रखना चाहोगे तो भी आप नहीं रख सकते। हाँ जी, मतलब ये ऑप्शन भी एप्लीकेबल हो जाएगा ना क्योंकि सर उस शिवानी पे? जी एक बात बताओ, उस केस में आपने एक हाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी ले रखा था 18,000 रुपए का, जो कि उसने जमा भी करा रखा था, ठीक है। अब आप मुझे हाँ कह रहे जी। हो हाँ एक जी। ट्रांजेक्शन और कर दो नव्या जी नीचे, क्या कि एक आप आरसीएम डिपॉजिट करा दो, इंटरेस्ट डिपॉजिट करा दो और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल करा दो। हाँ जी। हाँ जी। ये एक सेपरेट लेग हो जाएगी और ये एक सेपरेट ट्रांजैक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये आप बट आई थिंक रेवेन्यू न्यूट्रलिटी पे लड़ते रहोगे। हाँ जी। मैम मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट इसलिए लगता है, वो ये कहेंगे कि आपने ये वाली ट्रांजैक्शन क्यों करी जब ये वाली करनी थी, ठीक है। और आपके पास क्या इसका कोई डॉक्यूमेंट है? मैम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए डॉक्यूमेंट भी तो तो सर उसमें डॉक्यूमेंट। हाँ नहीं, बिलिंग तो उसी की है सर। वो वहां पर वही फाइट करना पड़ेगा, तो टैक्स इनवॉइस ही गलत बना था, अब गलत बन गया और वो सब हो गया, तो ये एक फिर अलग फाइट चलेगी आपकी ऊपर वाली। नीचे वाले का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, अब प्रॉब्लम ओके वही पे तो आएगी मैम, ठीक है। ऊपर वाले के लिए आपको फाइट करते रहना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा, ये 18,000 तो डिसअलाउ कर देगा और ये जो जमा करा वो उसको तो अपने पास ही रखेगा। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। समझ रहे हैं, मैं ना कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर रहा था, बस मैंने वो कोशिश करी जो मैं खुद कर सकूं, रादर मुझे डिपार्टमेंट की मर्जी पे रहना पड़े। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है, आपकी हाँ चॉइस जी। है, बट आप हाँ, मैंने इसलिए सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए कि एज एन ऑडिटर आपको पता हो कि हमारे को ये वाली चीजें भी डिफिकल्ट वाली है इस बार। ओके सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। यहाँ और किसी का कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। तो मेरा आरसीएम बहुत डेप्थ में डिस्कस हो गया है पूरा, मेरा आरसीएम पूरा डेप्थ में डिस्कस हो गया है। आगे बढ़ते हैं सर थोड़ा सा। नाउ कमिंग टू दी सेक्शन 17.5, कमिंग टू द न्यू सेक्शन 17.5, 17.5 का नया सेक्शन डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ। चलिए, ये क्या कहता है, आपके पास एक नया सेक्शन 17.5 आया। कब आया? सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर 1 February 2019। सर इसमें मैं आपके साथ एक चर्चा जो इंपॉर्टेंटली करना चाह रहा हूं वो नोट कर लेंगे बस, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर ये कहता है आपको गाड़ी की रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये कहता है आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सर ये एक्सप्रेसिवली लॉ में कहता है 1 फरवरी 2019 के बाद से कि आप मोटर व्हीकल का क्रेडिट, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का क्रेडिट डिनाई कर दिया जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा। माय सिंसियर इंस्ट्रक्शन, यहाँ आपसे क्वेश्चन पहले पूछता हूं आपसे, सर 1 जुलाई 2017 से लेकर आपको अगर मैं बात करूं 1 फरवरी 2019 तक की, तो मुझे बताइए क्या उसका रिपेयर मेंटेनेंस का आईटीसी, क्या उसकी गाड़ी के टायर की रिप्लेसमेंट, क्या उसकी गाड़ी की इंश्योरेंस का क्रेडिट आपको मिल जाएगा? सर सिंपल क्वेश्चन ये है, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 जनवरी 2019 तक, 31 जनवरी 2019 तक का क्या आपको गाड़ी की रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का क्रेडिट मिल जाएगा? यस और नो? मोहित जी कह रहे हैं, मदान साहब आवाज आ रही है अब? मदान साहब ठीक है। मोहित जी कह रहे हैं क्रेडिट्स आर नॉट अवेलेबल इवन अर्लियर। पवन जी कह रहे हैं नहीं मिलेगा। राधिका जी कह रही है मिल जाएगा। सर इसमें आपका मुझे बहुत एक इंपॉर्टेंटली डिस्कशन इसलिए चाहिए आपको, अगर किसी आपके क्लाइंट ने इस ऑडिट की ड्यूरेशन के शुरू के 10 महीने में कोई गाड़ी की रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट लिया होगा तो विल यू अलाउ इट? मोदी अलाउ? जिंदल जी ने वेरी स्पेसिफिकली कर दिया है।
इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और कोई पॉइंट, और कोई अरोड़ा साहब, हाँ जी सर। सर कनेक्ट हो गया वापस? हाँ कनेक्ट हो गया सर, अब ऑडिबल है। हाँ, कुछ लाइट का इशू, हाँ नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ जूम में बार बार कनेक्ट हूँ, मीटिंग आईडी इनवैलिड दिखा रहा। चलिए, सर। वॉइस ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। अब आ रही है सर? हाँ अब क्लियर है सर, क्लियर।
सॉरी, ब्रेक हो रही है फिर बहुत ज्यादा। चलिए सर आवाज आ रही होगी अब? ठीक है, अब क्लियर है, क्लियर है। चलिए मैं ऊपर छत पे आ गया सर। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर डिस्कशन कर रही थी कि हमारे पास क्रेडिट्स तो हमारे को अलाउ हो गए। आरसीएम के ऊपर मैंने चर्चा कर ली आपकी कि आरसीएम का क्रेडिट कैसे मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, क्या होगा। मेरे पास अब एक डिस्कशन जो घूम रही थी वो घूम रही थी आपके साथ अभी गाड़ी के मोटर व्हीकल के क्रेडिट की। ठीक है, आपके ऊपर यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस के क्रेडिट की मैंने डिस्कशन करी कि ये क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर मेरे पास बहुत अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज आ रहे होंगे, यहाँ पर अलग अलग आपका थॉट प्रोसेस होगा कि क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 महीने में ऐसा हो सकता है, मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये टैक्स प्लानिंग टेक्निक की तरह हो सकता है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकता है कि ये आपके लिए कोई एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया बच जाए सर, जिसमें आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाए कि भाई ये क्रेडिट अलाउ होगा या नहीं होगा। चलो सर, रिपेयर मेंटेनेंस की बात करता हूं। मैंने सर लॉ में पीछे एक्सप्रेसिवली कभी मेंशन नहीं था कि ये क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्रेडिट के ऊपर कोई पॉइंट नहीं था कि ये क्रेडिट दूं या ना दूं। तो अब सर इन्होंने एक क्लियर विजन दे दिया कि आपको 1 फरवरी से क्रेडिट तो 100% डिसअलाउ कर दिया गया है। 1 फरवरी से क्रेडिट 100% डिसअलाउ करते हुए आपको ये अलाउ ही नहीं करते कि क्रेडिट आपको दें हम। ठीक है, तो अब मुझे बताइए सर, आपने इस पे व्यू लिया कुछ ने कि क्रेडिट नहीं दूंगा। सर नोट करेंगे मेरा व्यू पॉइंट, सर नोट करेंगे मेरा सर्टेन व्यू पॉइंट इसके ऊपर। सर इस पे क्लियरली हमें एक विजन लेके चलनी है कि क्रेडिट अगर मेंशन्ड नहीं था कि नहीं ले पाएंगे, सो सर यू कैन टेक एन एग्रेसिव व्यू, यू कैन टेक एन एग्रेसिव व्यू और आप इसका क्रेडिट ले सकते हो। सर आप इसका क्रेडिट ले लीजिए सर, टेकिंग एन एग्रेसिव व्यू आप इसका क्रेडिट ले सकते हो। सर मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं हो रहा, प्लीज समझ लेंगे इसको सर, प्लीज समझ लेंगे व्हाई आई एम ऑन अ व्यू कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव क्यों नहीं ले रहा मैं। सर इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव नहीं ले रहा कि सर एनी अमेंडमेंट इन लॉ विच हैज अ इफेक्ट ऑफ कर्टेलिंग द राइट ऑफ एन असेसी, सर कर्टेल कर रहा है ये आपका राइट ऑफ एन असेसी, इट इज कर्टेलिंग योर राइट ऑफ एन इनपुट टैक्स क्रेडिट, इट कैन नॉट बी मेड रेट्रोस्पेक्टिव। सर ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। सर मैं मानता हूं कि आपको लग रहा है कि इंटेंशन नहीं होगी, बट लॉ में इट वाज ओपन, नॉट मेंशन्ड, इट वाज अ डाउट दैट यू कैन टेक इट और नॉट टेक इट, नोवेयर इट वाज एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड। और अगर एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड होता तो उनको लॉ को अमेंड करके सेक्शन को रिप्लेस ना करना पड़ता सर। तो सर आप लॉ खोल के देख लेंगे। अब आप बताइए सर इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपका क्या थॉट है और क्या विजन है इस पे, क्या आप ये क्रेडिट अलाउ कर देंगे? सर पर्टिकुलरली माय व्यू पॉइंट इज कि आप इसको एग्रेसिवली ले सकते हैं। ठीक है, इन आर व्यू इट मे लीड टू लिटिगेशन। जिंदल साहब कह रहे हैं बिल्कुल जिंदल जी ये लिटिगेशन में जाएगा, और मैं आपको 100% बता रहा हूं देयर आर मेनी रूलिंग्स व्हिच सेज एनी अमेंडमेंट व्हिच हैज अ राइट ऑफ कर्टेलिंग द राइट ऑफ एन असेसी कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली, हेंस इन माय व्यू इट कैन नॉट गो रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है सर, लॉ में चेंज हुआ जिंदल साहब वही। अब आप मेरी बात समझेंगे, जहां जहां भी मैं डिस्कशन करता हूं ना सर एग्रेसिव व्यू लेने की, जहां जहां भी मैं आपको बोलता हूं ना सर इसमें एग्रेसिव व्यू ले लेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, सर वहां पर मेरे लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। सर मैं क्या पता लिटिगेशन की कॉस्ट ही इतनी बढ़ जाए जितना क्रेडिट ना हो। तो ये थॉट आपको लेके चलना पड़ेगा कि मैं किस चीज को ले रहा हूं और कितना क्रेडिट ले रहा हूं, और वो लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपको इस पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा। सर इस पे क्या और कोई व्यू पॉइंट है, कोई डिस्कशन करनी है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज आई कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए किसी को भी अनम्यूट करना है, कोई सवाल पूछना है वो पूछ सकता है साइड साइड। महेश जी कोई सवाल है? नो सर, नहीं है, ठीक है।
यहां पर अब मेरी चर्चा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑडिट के लिए, प्लीज वो अब आप नोट करेंगे, ये ई वे बिल की बात। अब आपको लग रहा था ई वे बिल इंपॉर्टेंट नहीं है। सर मुझे पहले बताइए अरोड़ा साहब, सर बोर तो नहीं हो रहे सब, मतलब नींद सबकी खुली हुई है? नहीं सर, बढ़िया 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 सर, बढ़िया कंसेप्ट दे रहे हो सर। अब आप साइड बाय साइड नोट भी करेंगे। अब जो मैं कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंसिलिएशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंसिलिएशन, pre-relevantly important for my audit of 2018 and 19, pre-relevantly important for my audit of 2018-19। सर यहाँ पर अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने ई वे बिल की चर्चा के लिए आपको कुछ बोला, आपने कहा सर क्या मतलब बोल रहे हैं आप, मुझे बताइए। सर मैंने सिंपल मात्र इतनी सी बात बोली, ई वे बिल से रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी आपको इस बार 2018-19 के ऑडिट में। जब 2018-19 का ऑडिट चल रहा होगा, जो आप जीएसटी ऑडिट कर रहे हैं, देयर आर सर्टेन रिकंसिलिएशंस व्हिच यू नीड टू कैरी। जब रिकंसिलिएशन की चर्चा में शुरू करता हूं तो मैं कहता हूं सेल रजिस्टर हो या परचेज रजिस्टर हो, आपको इनमें से रिकंसिलिएशन करनी होती है। कैसे रिकंसिलिएशन करता हूं? पहली मात्र रिकंसिलिएशन करता हूं, आप गिनते जाइएगा सर। मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के ये भी बताइए आपके हिसाब से कितनी रिकंसिलिएशन होती है जीएसटी के अंदर, आपके हिसाब से जीएसटी में कितनी किस्म की, और पक्का 100% मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। किसी ने अगर लिखा 1 तो ठीक है 1, 2 लिखा तो 2, 5 लिखा तो 5, 15 लिखा तो 15। अपना बस व्यू पॉइंट शेयर करो। ऑन अप्रोक्सीमेटली आपको क्या लगता है जब हम जीएसटी का एक ईयर क्लोज करते हैं या ऑडिट कर रहे होते हैं तो कितने किस्म की रिकंसिलिएशन करते हो आप? सर मैं यहाँ लिखता जाता हूं, आप चैट बॉक्स खुला हुआ है, साइड बाय साइड लिखते जाएंगे अगर आपको थॉट आता है। जिंदल साहब ने लिखा 3B वर्सेस 1 वर्सेस बुक्स वर्सेस 2A वर्सेस 1 वर्सेस 3B। ठीक है, और कोई सर, और कोई थॉट? हाँ टीडीएस वर्सेस बुक्स। ओके जिंदल साहब आपने बिल्कुल अब बिल्कुल सही क्रिटिकल पॉइंट पकड़ने लगे हैं। सर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, भाई साहब ने लिखा जीएसटीआर 2A ऑल्सो, जिंदल साहब ने 2A भी लिखा है। ठीक है सर, ये कितनी रिकंसिलिएशन हो गई? 1 2 3, 1 2 3। अब आप नोट करेंगे जब आप ऑडिट करने लगते हैं क्रिटिकल एरिया रिकंसिलिएशन कैसे बन जाता है। सर इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया क्या बचता है? इन दोनों की खुद की भी तो रिकंसिलिएशन होती है आपस में। सर 1 और 3B, 3B और 2A इनकी भी तो रिकंसिलिएशन करते हो। सर कितनी रिकंसिलिएशन हो गई? 4 और 5। यहां से मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा आपके डिस्कशन के लिए। सर क्या 2A में क्रेडिट नहीं दिख रहा होता, जो कि मेरे एजेंडा के लिस्ट में भी है, 2A में अगर क्रेडिट नहीं दिख रहा होता या दिख रहा होता है तो 2A के अंदर क्रेडिट दिखना ना दिखना क्या ऑडिटर के लिए कोई रेड फ्लैग सिग्नल होता है, क्रेडिट डिनाई करना होता है? मैं 2018-19 की बात कर रहा हूं सिर्फ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। मुझे बताइए आपके 2A में जब आप 18-19 का ऑडिट कर रहे हैं, आपके 2A में 15 लाख रुपए का क्रेडिट नहीं दिख रहा। एज एन ऑडिटर आपका क्या फर्ज, क्या नीति, क्या धर्म होगा? आप क्या करेंगे इसमें? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। अनम्यूट करना है अनम्यूट करिए सर, जल्दी बताएंगे सर क्या थॉट है आपका इस पे। ओके जिंदल साहब कह रहे हैं एटलीस्ट देयर शुड बी अ रिकंसिलिएशन। ठीक है बिल्कुल सर जिंदल साहब, मैं भी रिकंसिलिएशन तो करूंगा, लेकिन अगर क्रेडिट नहीं दिखेगा आप उसका क्या करोगे? रूपा जी बताइए। ठीक है मोहित जी कह रहे हैं लीगली नॉट अवेलेबल टू अस। मोहित जी कह रहे हैं लीगली नॉट अवेलेबल टू अस। ओके सर यहाँ पर अब आप फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा आपसे, एक मात्र बस विनती है सर, सेक्शन नोट कर लेंगे, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैं फिर से बोल दिया उस सेक्शन को।
सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। ये क्लियरली एविडेंटली सिर्फ एक ही बात बोलता है, ये कहता है क्रेडिट आपको कब मिलता है, 4 कंडीशंस पे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई भी थी। टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपको सप्लाई रिसीव्ड होनी चाहिए, आपका टैक्स डिपॉजिटेड होना चाहिए, आपका टैक्स डिपॉजिट हुआ होना चाहिए, आपकी रिटर्न फाइल्ड होनी चाहिए, आपकी टैक्स डिपॉजिट होना चाहिए और आपकी रिटर्न फाइल्ड होनी चाहिए। सर मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, महेश जी ने कुछ लिखा भी है, महेश जी ने लिखा है क्रेडिट विल बी टेकन एंड नोट विल बी गिवन। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज अवेलेबल हैं। ठीक है, मोहित जी कह रहे हैं सेक्शन 42(3) एंड 42(5) में लिखा हुआ है 2A में क्रेडिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मोहित सर एक बार अनम्यूट कर सकते हो सर प्लीज, एक क्वेश्चन पूछना है आपसे सर, बस मतलब नॉट क्रॉस क्वेश्चन, बस एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। मोहित सर एक बार अनम्यूट करेंगे प्लीज। सर यहां पर मोहित जी आवाज पहुंच रही है आपको? मोहित जी ऑडिबल है? हाँ जी सर। हाँ मोहित जी आपने जो सेक्शन कोट किया, हाँ जी आपने कहा सेक्शन 42 रेड विद 42(5), वो मैचिंग का सेक्शन है सर जी। सर मैचिंग प्रिंसिपल्स तो आज तक चले ही नहीं सर। जीएसटीआर 1 से क्रेडिट 2A में जाता, 2A से सर कहाँ जाता, 2 में 2 से कहाँ जाता, 1A में 1 से कहाँ जाता, 3 में, यही होना था सर जी। सर ये प्रिंसिपल तो कभी चला ही नहीं। लेकिन मेरी शुरुआत है ना, मैंने वो अपने 16(2) से ही की है। हाँ ठीक है, 16(2)(c) में जिंदल साहब टैक्स डिपोजिशन के बारे में लिखा है। क्या 1 में क्रेडिट ना दिखना मींस कि टैक्स डिपॉजिट नहीं हुआ? 1 में 1 से तो 2A बन रहा है ना जिंदल साहब। हाँ जी हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 2A में क्रेडिट नहीं दिख रहा इसका मतलब टैक्स पेड नहीं है। जरूरी नहीं है सर, ठीक है, जरूरी नहीं है जिंदल साहब, समझ रहे हो? ये इसके लिए फिर हम सप्लायर से कंफर्मेशन ले लेंगे। मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको। 18-19 में मेरे पास एक पेक्युलैरिटी है जिंदल साहब। अगर जिंदल साहब जो आप कह रहे हो और वो रेलिवेंट होता, बिल्कुल सही होता और ये मैकेनिज्म चल रहा होता, तो जिंदल साहब फिर उनको रूल 36 सब रूल 4 लाना क्यों पड़ा कि 2A में क्रेडिट नहीं दिखेगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा? आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? 1 में क्रेडिट ना दिखने से ये कंफर्म नहीं होता कि वो 3B में पेड नहीं है। 1 में कंफर्म नहीं होता इसका मतलब नहीं है कि वो टैक्स पेड नहीं है। बट ये क्लियर भी तो नहीं होता ना सर कि उसने जमा करा दिया है। सर जिंदल साहब फिर अगर 1 में दिख रहा है इसका मतलब आप मान लोगे टैक्स पेड है? नहीं, अगर मेरी 2A में दिख रहा है, हाँ, जो कि लोग अपनी 3B फाइल नहीं कर रहे थे, पहले जीएसटीआर 1 फाइल कर देते थे। हाँ exactly. आप तो वो वाला केस कवर कर रहे हैं ना कि भी yes, जो उससे हो सकता है जमा नहीं हुआ हो। यस सर, कि सिर्फ अपने जो कि लोग जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं 3B की बजाय। बिल्कुल सर, फिर कैसे करोगे? यही डाउट हो जाएगा उसके अंदर। अब आप समझ गए जिंदल साहब, मैं उस एरिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक एग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ेगा इसमें। मेरा सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 पूरा कहता है 2A के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। 9 अक्टूबर 2019 से गवर्नमेंट लेके आई नया रूल कॉल्ड 36 सब रूल 4 टू एक्चुअली कवर दीज ट्रांजैक्शंस। वही 20% और 10% वाला, ठीक है ना? अब अगर मैं ये कहूं कि 2018-19 में कोई क्रेडिट 2A में नहीं दिख रहा, सर एज एन ऑडिटर आप उसको डिनाई नहीं करोगे। सर आप उस केस में अगर हाई वैल्यू आइटम होगी ना जिंदल साहब, मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये रहती है, आप उसमें काउंटर पार्टी से कंफर्मेशन ले लो कि टैक्स डिपॉजिटेड है या नहीं। बस मैं ये भी नहीं कहूंगा उसकी 3B चेक करो। क्यों? क्योंकि सर 3B चेक करने लगा अगर मैं अपने क्लाइंटों की, तो फिर तो मैं सर दूसरों को भी ऑडिट स्टार्ट कर दिया। नहीं, वो टैली भी नहीं होगी ना, पता नहीं क्या नहीं हो पाएगा सर। वो एक कंसोलिडेटेड रिटर्न है, वो एक समरी रिटर्न है, इसलिए वो मेरे लिए डिफिकल्टी है। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ऐसे जेन्युइनली बहुत केसेस दिखने को आएंगे आपको 2018-19 में, आप चेक कर लेना, आपको दिखेगा भी। सर जीएसटीआर 1 में इनवॉइस दिख रहा होगा जी सर, उसका जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन का स्टेटस होगा ना सर, वो कैंसल्ड होगा। आज इन्होंने 1 फाइल की है पहले। सर ये 1 फाइल करके 2A में तो दिखा दिया गया,
और 3B जी। आज तक फाइल नहीं हुई, यहाँ पर आप क्या पार्टी से कंफर्मेशन लोगे? उसका तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया है। यहाँ जी। पर एज एन ऑडिटर आपको कमेंट लिखना पड़ेगा केसेस के बारे में सर। Okay. ये आपके लिए कंसर्न्ड एरिया, रेड फ्लैग है, यहाँ पर क्रेडिट डिनाई हो सकता है आपका। जी। ये लिटिगेशन में जाएगा केस। लेकिन 2A में क्रेडिट नहीं दिख रहा, रिटर्न स्टेटस ठीक है, कंफर्मेशन मिल गया, 3B का फाइल स्टेटस ठीक दिख रहा है, मैं क्रेडिट डिनाई नहीं करूंगा, सिर्फ एक कमेंट लिखूंगा बस कि देयर आर एक नोट डाल देंगे रिकंसिलिएशन का। बस सर। जी। आप समझ गए जिंदल साहब? हाँ जी, हाँ जी। आर यू अग्रीड विद मी? जी सर, जी सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो 2A की टिप्पणी भी हो गई कि भाई 2A में क्रेडिट नहीं दिखेगा। मैं रिकंसिलिएशंस लिख रहा था आपके सामने, जिंदल साहब ने एक और रिकंसिलिएशन बता दी थी। उन्होंने कहा भाई TDS और TCS और बुक्स की रिकंसिलिएशन भी करा दो। ठीक है, मैं करा देता हूं सर। TDS और TCS की रिकंसिलिएशन भी जब बुक से आप करते हैं तो आपको मैंने एक एग्जांपल के साथ अभी चर्चा भी की थी, TDS की रिकंसिलिएशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहां पर सप्रेशन ऑफ टर्नओवर के चांसेस होते हैं ऑफिसर की नजर से। यहाँ पर आपका कमेंट लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये होती है आपकी 6ठा और 7वें नंबर की रिकंसिलिएशन, 6th और 7th किस्म की रिकंसिलिएशन। साथ ही साथ आपकी एक नई रिकंसिलिएशन और भी होती है सर, इनकम टैक्स वर्सेस GST। ये भी एक रिकंसिलिएशन होती है आपकी, ये भी आपकी एक रिकंसिलिएशन होती है। दिस इज 8th नंबर रिकंसिलिएशन, ये भी आप एक रिकंसिलिएशन करते हो। अब मैं आपके सामने एक रिकंसिलिएशन लिखने जा रहा हूं, ई-वे बिल रिकंसिलिएशन। सर ई-वे बिल से भी तो आपको रिकंसाइल करना होता है डेटा। ई-वे बिल से कैसे रिकंसाइल करता हूं भाई साहब? सर आप देखते हो कि 1 में जो आपने इनवॉइस चढ़ाए हैं वो ई-वे बिल में गए या नहीं गए। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो प्रैक्टिकली बड़ा डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि ई-वे बिल की रिपोर्ट सिर्फ 5 दिन की निकलती है सर। ई-वे बिल की सिर्फ रिपोर्ट 5 दिन की निकलती है। In such a case, my simple submission is follow the auditing principles. Auditing principles क्या कहते हैं सर? सैम्पलिंग, मेटीरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन। फिर से बोल रहा हूं, सैम्पलिंग, मेटीरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि आप किसी एक महीने को एज अ सैंपल चूज करिए, उसमें मटेरियल ट्रांजैक्शंस को देखिए और उनको डॉक्यूमेंट करके अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाते हुए उनको ऑडिट करिए। अगर वो ई-वे बिल, अब क्या निकलने को आएगा सर? यहां से आपके पास कुछ ट्रांजैक्शंस निकल के आएंगी जो ई-वे बिल में होंगी और GSTR 1 में नहीं होंगी, या तो आपके पास ट्रांजैक्शन निकल के आएगी जो ई-वे बिल में भी होगी और 1 में भी होंगी, या आपके पास निकल के आएगा ई-वे बिल में नहीं होंगी 1 में होंगी, या आपके पास क्या निकल के आएगा? ई-वे बिल में 2 बार होंगी 1 में 1 बार होंगी। ये टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस निकल के आएंगी आपके पास। क्या कॉन्सिक्वेंसेस, कॉम्प्लिकेशंस होंगी इसकी आप देखिए। अगर ई-वे बिल में है और 1 में नहीं है, ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग एरिया है। ऐसा कैसे हो गया कि 1 से कहीं इनवॉइस तो नहीं हटा दिया गया बाद में? तो ये मेरे लिए एक रिपोर्टिंग पॉइंट बन जाएगा कि 1 के लिए इनवॉइस तो नहीं हटा दिया, कहीं टैक्स इवेजन तो नहीं हो गई इससे। सर ये वाला केस तो ओके है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट केस है कि ई-वे बिल बनाना रह गया और 1 में है। सर ये भी आपके लिए एक रिपोर्टिंग पॉइंट बनेगा, ये भी रिपोर्टिंग पॉइंट बनेगा। आपको लिखना होगा देयर वर सर्टेन इंस्टेंसेस encountered in the course of audit where it was observed that there were transactions having disclosure in GSTR1 but there were no e-way bills made for them। ठीक है सर, यहां पर ये एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग एरिया होता है। ऐसा कैसे हो गया कि एक इनवॉइस था और वो एक ही बार 2 बार बन गया उसका ई-वे बिल? सर 18-19 में ही अलाउड था, ये पोर्टल पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो ये भी आपके लिए एक रेड फ्लैग सिग्नल बन गया है। ठीक है सर, तो मेरी ई-वे बिल से जब मैं रिकंसिलिएशन कर रहा हूं तो ये मेरी ई-वे बिल से रिकंसिलिएशन मैं 1 से भी करता हूं सैम्पलिंग बेसिस पे, 3B से भी करता हूं और अपने 2A से भी करता हूं कि मैंने जो सामान खरीदा उसके ई-वे बिल थे या नहीं थे। तो ये 8th, 9th और 10th मेरे पास 10 रिकंसिलिएशन हो गई फिलहाल GST के अंदर। अब आप कह रहे हो सिर्फ 10 रिकंसिलिएशन होती है GST के अंदर? सिर्फ 10 होती है या और कोई भी होती है? सर और भी होती हैं, नोट करिए, आपके पास और भी रिकंसिलिएशन होती हैं GST के अंदर। क्या रिकंसिलिएशन है सर? आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर का उसके नेक्स्ट सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2017-18 का 18-19 और 2018-19 का 19-20 में जो डिस्क्लोजर्स हुए हैं उनके ऊपर भी तो रिकंसिलिएशन बनानी होती है।
क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट पे 2 रिकंसिलिएशन बनेंगी, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे भी 2 रिकंसिलिएशन बनेंगी। पिछले साल का आईटीसी कितना 2017 का आगे लिया, इस साल वाला कितना अगले साल में लिया, ऐसे ही कितना रिवर्स किया, इस साल वाला अगले साल में रिवर्स किया, कितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पिछले साल का अगले साल में पे हुआ, कितना अगले साल में एडजस्ट हुआ, इस साल का कितना अगले साल में पे हुआ, इस साल का कितना अगले साल में एडजस्ट हुआ। यानी कि ये कितनी रिकंसिलिएशन हो गई सर? सर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, कितनी हो गई सर? मैंने 10 लिखी थी रिकंसिलिएशन ऊपर, 10 के साथ 8 और जोड़िए, 18 किस्म की रिकंसिलिएशन हो गई। Sir, there exist 18 kind of reconciliation uniquely which I can identify in GST reconciliations. Sir, काम कम नहीं है, 100% इस बार काम 2 गुना हो चुका है 2017-18 से 18-19 के अंदर। चलो सर, ई-वे बिल भी हो गया। सर मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आए, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉय रिकवरी और आईएसडी। सर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के बारे में लिख लेंगे अब प्लीज। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के लिए इट इज वेरी मच क्लियर, और ये रेट्रोस्पेक्टिव है सर क्योंकि ये क्लैरिफिकेटरी नेचर के हैं। सर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के लिए उन्होंने एक चीज बोली कि अगर आपका डायरेक्टर का जो इनकम टैक्स का टीडीएस है वो सेक्शन 192 में डिडक्ट होता है, अगर इनकम टैक्स का टीडीएस 192 में डिडक्ट होता है तो योर जीएसटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल एंड हेंस आरसीएम भी नहीं लगेगा। जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं होगा तो आरसीएम भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इट विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजैक्शंस। उसने बोला दिस विल बी कवर्ड अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजैक्शंस। सर अगर उसने कहा ये टीडीएस कटा 194J में, अगर ये टीडीएस कटा भाई साहब 194J में, बिल्कुल जिंदल साहब मैं लिखने वाला हूं अभी यहां पर 194I, ठीक है, मैं अभी लिखूंगा। अगर आपका टीडीएस कटा 194J में तो द सर्कुलर इज वेरी क्लियर, देन जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड इट शैल बी कवर्ड अंडर आरसीएम। इट शैल बी कवर्ड अंडर आरसीएम। अब क्या आई कहानी? सर्कुलर साइलेंट था 194I के ऊपर, इट इज साइलेंट, it do not mention anything about 194I, that is it does not cover anything related to 194I rentals paid to the director who is a whole time director। जिंदल साहब होल टाइम डायरेक्टर का मतलब मान के चलूं आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला कह रहे हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, ये मान लूं, ठीक है। जिंदल सर ने कहा यही मैं भी कहना चाह रहा हूं। सर क्या जो आपने उसको रेंट पे किया है, अब ध्यान से सुनेंगे सर जो मैं कह रहा हूं, आपने जो उसको रेंट पे किया है क्या वो डायरेक्टर कैपेसिटी में पे किया है? नहीं सर, आपने उसको वो डायरेक्टर कैपेसिटी में पे नहीं किया, वो आपने उसको एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में पे किया है। सर उस पे जीएसटी तो एप्लीकेबल हो जाएगा अगर उसकी 20 लाख वाली टर्नओवर क्रॉस कर गई, उसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा सर। यस सर, जिंदल साहब आप भी समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में लग जाएगा इसके अंदर अगर वो 20 लाख से ऊपर का होगा और उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, आरसीएम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऐसी कोई ट्रांजैक्शन को अभी रेफर नहीं करता अनरजिस्टर्ड पर्सन के अंडर, आपको वो आरसीएम लगता ही नहीं अभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 194I आरसीएम नहीं कवर करता, जीएसटी जरूर कवर करता है। इट इज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी यू हैव पेड हिम, ठीक है। आगे बढ़े अरोड़ा साहब, 10 मिनट है मेरे पास। हाँ जी सर। लोग सर आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कोऑपरेट। आप सुनते रहे, मुझे पता है मैं टाइम क्रॉस करने वाला हूं अभी 3 मिनट में, बट आई हैव टू कवर द कंटेंट जो आपको बिल्कुल आज सॉलिड पोजीशन में छोड़ के जाएगा जीएसटी ऑडिट के लिए। जिंदल साहब आपका आंसर हो गया, आगे बढ़े। सर एम्प्लॉय रिकवरी पे आ रहा हूं मैं, एम्प्लॉय रिकवरी पे आ रहा हूं अब, ठीक है, ठीक है जिंदल साहब। एम्प्लॉय रिकवरी में अब ध्यान से सुनेंगे, आपकी 2-3 चीजें लिखूंगा मैं सर। एक होगा आपका एम्प्लॉय जो होगा एम्प्लॉय ऑन पेरोल, एक होगा एम्प्लॉय ऑन पेरोल, एक होगा आपका एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्चुअल होगा। सर ध्यान से सुन रहे हैं, एक एम्प्लॉय होगा आपका पेरोल पे, एक होगा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। सर मैं मान के चल रहा हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका? मैं एग्जांपल ले रहा हूं फूड एंड बेवरेज का।
फ्री में कैंटीन में खाना मिलेगा, या कुछ कैंटीन में 20 रुपए की आप थाली दोगे जो कि 100 रुपए की होती है। सर आई एम अज्यूमिंग एक थाली है 100 रुपए की जो आप 20 रुपए में देते हो। एक तो मेरी अजम्पशन ये होगी, एक अजम्पशन होगी 100 रुपए की थाली फ्री में देते हो। जैसे कि हम अपने सीए ऑफिसेज में चाय की मशीन लगाते हैं, हम कहते हैं चाय फ्री में पी लो, हम क्या एम्प्लॉय से कोई रिकवरी करते हैं? नहीं करते, ठीक है। सो दैट विल बी कवर्ड अंडर फर्स्ट ऑप्शन। द सेकेंड ऑप्शन इज 100 रुपए की थाली 20 रुपए में ले लो। सर पेरोल पे है एम्प्लॉय, पहले हम ध्यान से यहां से सुनेंगे, पेरोल पे है एम्प्लॉय अगर तो फर्स्ट ऑप्शन जो कि ऊपर पहला लिखा है और दूसरा लिखा है, पहले ऑप्शन में क्या किया जाएगा? विल देयर बी एनी जीएसटी इम्प्लीकेशन? हाँ सर, देयर विल बी अ जीएसटी इम्प्लीकेशन। आईटीसी विल नॉट बी अलाउड क्योंकि इट इज कवर्ड अंडर 17(5) एंड देयर विल बी नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बनेगी। दिस इज एन एक्सपेंडिचर टू कीप एंड अपकीप द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस ऑपरेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। It is an implied part of a facility given to employee as per the employer-employee agreement. आप एसी लगा के देते हैं, वो एसी की हवा खा रहा है फ्री में, that is to upkeep the business. आपने चाय की मशीन लगाई, वो चाय पी रहा है फ्री में, that is to upkeep the business. ठीक है सर, यहीं पर मैं रिलेट करता हूं। आपने सैनिटाइजर का खर्चा किया, आपने मास्क का खर्चा किया, आपने क्लियरली आपने बोर्ड्स लगाए, आपने जो भी खर्चा किया ये सैनिटाइजेशन का, सर क्रेडिट मिल जाएगा। That is to upkeep the business expenditure. As per the MHA guidelines, they have made compulsory to make sanitizers, social distancing, ऐसी चीजें करनी होंगी तभी ऑफिस चल पाएगा, नहीं तो ऑफिस नहीं चल पाएगा। Coming to the second option, आपने कहा नहीं मैं 100 रुपए की थाली 20 रुपए में दूंगा। यहां पर आप ध्यान से सुनेंगे, आईटीसी अलाउ हो जाएगा, हाउएवर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी जाएगी। यहां पर क्रिटिकल एरिया क्या होगा वो स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, दैट इज वैल्यूएशन। सर यहां वैल्यूएशन भी ट्रिगर करेगी। यू आर अ रिलेटेड पार्टी रिकवरिंग समथिंग, 100 रुपए की चीज 20 रुपए रिकवर करनी शुरू कर दी आपने, इट शैल बी ट्रीटेड एज यू आर इन द बिजनेस ऑफ सर्टेन थिंग। आपको इनपुट भी ले जा रहा हूं, आउटपुट भी पूरा देना पड़ेगा। इनपुट भी दिला रहा हूं, आउटपुट भी पूरा लेना पड़ेगा। कमिंग टू द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, कमिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन, सर इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नॉट एलिजिबल, पे नहीं करती। कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन, 100 रुपए की थाली के ऊपर 20 रुपए का आपने उससे रिकवरी करी, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी जाएगी और सिर्फ जाएगी 20 रुपए के ऊपर। सर इफ यू आर अनरिलेटेड, यहां पर वैल्यूएशन रूल ट्रिगर नहीं होता। When you are not an employee, contractual are not employees on the payroll, यहां पर वैल्यूएशन रूल ट्रिगर नहीं होता। मजा आया ये सुन के? ये सर कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया आज। फंडामेंटली मैंने स्क्रीन पे इसलिए इसको क्लैरिटी से लिखवा दिया है। सर मेरे को लास्ट एक सेगमेंट डिस्कस करना है, टोटल गिनती के 5 मिनट लगेंगे इफ यू अलाउ। आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज, आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज। सर 2018-19 में, 17-18 में, 19-20 में और आज तक मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज। ये जीएसटी ने हमें सिखाया है। कोई मुझे चर्चा करके बता सकता है अनम्यूट करके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएसडी एंड क्रॉस चार्ज? आईएसडी और क्रॉस चार्ज में क्या अंतर होता है, कब कौन सा लगाना होता है? सर कोई गेस? सब कह रहे हैं गेस नहीं करना, ऑलरेडी टाइम पार हो चुका है, बता दो बस। चलो मैं बता देता हूं, मुझे पता है आपके मन में क्या आ रहा है, जल्दी से खत्म हो और जल्दी से हम आगे जाएं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, नोट करेंगे क्योंकि मुझे पता है इससे कहीं पहले 1-2 छोड़ के चले जाएं, उनका कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। सर आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज क्या होता है, ध्यान से सुने। आईएसडी इज एप्लीकेबल एज अ डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, ये खाली एक डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है।
However, cross charge is a charging mechanism. ये एक चार्ज करने का मैकेनिज्म होता है। आप कह रहे हो मतलब, ये तो आपने वर्ड्स को ही तोड़ के मरोड़ दिया। नहीं सर, ध्यान से सुनेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के लिए होता है। दिस कैन बी फॉर गुड्स एंड और सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। आपने कहा मतलब, थोड़ा सा अंतर और समझाओ। सर यहां पर आप कोई भी ऑन बिहाफ पे सर्विस नहीं दे रहे होते, ऑन बिहाफ रेंडरिंग नहीं होती कोई भी। मतलब आपने ऑडिट की, सर्विसेज ली ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांचेस, तो यहां पर आपने खुद थोड़ा ना ऑडिट किया है, हेड ऑफिस ने कोई। यहां पर तो आपने बाहर से प्रोक्योरमेंट करी और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। यहां पर क्या होता है आई क्रॉस चार्ज में? सर क्रॉस चार्ज में हेड ऑफिस सर्विस दे रहा होता है, इसलिए वो एक नॉर्मल बिलिंग होती है। यहां पर प्रोक्योरमेंट नहीं होती, यहां पर हेड ऑफिस खुद हिमसेल्फ इज ऑन बिहाफ रेंडरिंग। यानी कि जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, सेंट्रलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस। सर सेंट्रलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स बैठता है दिल्ली के अंदर, दिस इज एचआर फंक्शंस। यहां पर अब आप लिखेंगे एक और कॉन्सेप्ट में डिफरेंस दोनों। सर ये आपकी टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन क्रॉस चार्ज आपकी टर्नओवर का हिस्सा बन जाता है। क्रॉस चार्ज आपकी टर्नओवर का हिस्सा बन जाता है। सर ये आपको ध्यान रखना होगा, कहां पर क्रॉस चार्ज लगाना है और कहां इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। लोगों ने आईएसडी के अंदर क्रॉस चार्ज लगा दिया, क्रॉस चार्ज में आईएसडी लगा दिया। भाई साहब क्रॉस चार्ज में खुद के बिहाफ से सर्विस भी तो दे रहे होने चाहिए। अगर आप दे ही नहीं रहे तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर उसको? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आई हैव डिस्कस्ड। यहां पर किसी को कोई डिस्प्यूट है, कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। सर मैंने सिर्फ मात्र 5 मिनट एक्स्ट्रा लेते हुए आपके साथ पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करी। एंड बिफोर आई एक्चुअली कंक्लूड, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑन द स्क्रीन। अगर आपको लगता है कि कहीं आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई डिस्कशन करनी है या कोई चर्चा करनी है, व्हाट्सएप नहीं डालेंगे सर, व्हाट्सएप मेरे से मिस हो जाता है। आप मुझे कॉल कर लेंगे, मिस्ड कॉल मार के छोड़ देंगे, आई विल श्योरली कॉल बैक। विद दिस आई लीव माय डिस्कशन एंड रेस्ट माय डिस्कशन टू द ब्रांच एग्जीक्यूटिव्स। आई होप बिफोर एक्चुअली आई कंक्लूड आई वांट टू से आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग ने पेशेंस से सुना और पेशेंट नहीं बने, पेशेंस से सुना और पेशेंट नहीं बने। एंड आई होप I actually justified my presence today and I could justify what the topic was given to me with a proper essence of the topic. Also I want to say सर कहीं पे मेरे से derogatory या कुछ गलत remarks यूज हो गए हों या टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से कोई डिस्टर्बेंस आई हो, हैंड फोल्डेड अपॉलॉजीज फॉर द सेम। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर interactive wonderful discussion with the branch members. With this hand over to the executive sir. Thank you sir, thank you sir। मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। सर मैंने ना जैसे किसी पार्टी ने 3B फाइल नहीं किया, उसने GST R1 भी फाइल कर रखा है, मेरे पास टैक्स इनवॉइस भी है, उसकी सप्लाई की रिसिप्ट्स भी है और मेरे पास उसका वो है रिटर्न फाइल भी कर रखी है GST R1 उसने मेरे 2M में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसमें टैक्स लायबिलिटी किसकी है? मैंने उसको टैक्स मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी कर रखी है और वो लेके भाग गया, वो लेके भाग गया। तो टैक्स लायबिलिटी किसकी है? 16(2)(c तो यही कहता है कि आपके टैक्स में डिनाई करूंगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं सर, देयर आर मेनी रिट पिटिशंस, मेनी लिटिगेशंस बीइंग फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट आल्सो, ठीक है, रिगार्डिंग द सेम। सून विद इन दिस ईयर ओनली सर, अरोड़ा साहब मैं भी किसी चीज में इन्वॉल्व हूं इसी के अंदर। सून इन दिस ईयर ओनली वी आर होपिंग फॉर सम पॉजिटिव न्यूज़। ओके, थैंक यू सो मच। माय सजेशन इज टू कीप इट इन द कंटिन्यूएशन एंड अबियंस till the time we have a great master litigation judgment out of it. ठीक है सर, thank you so much sir. Yes sir. Anyone have query? I think there is no query. Query sir दो सिचुएशन में query नहीं आती है अरोड़ा साहब, यहाँ तो सब समझ आ जाए यहाँ सबको छुटकारा पाना है और तो बिल्कुल समझ ना आए सर। प्रवीण बता दीजिए सर। जी सर। नव्या जी मेरी क्वेरी भी राजेश जी की तरह ही है। मेरे क्लाइंट ने एक मशीनरी का बिल है उनके पास,
और वो बिल अप्रोक्सीमेट 80 लाख रुपीस का है। 70 आवाज कम आ रही है बहुत आपकी। मदन साहब आवाज कम आ रही है। बहुत कम आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ जी आ अब रही ठीक है। है। हाँ सर, 17-18 का कोई परचेज है मशीनरी की, और ठीक है बिल अमाउंट लगभग 81 लाख रुपीस का है। ठीक है सामने वाली, और बिल भी डिफरेंट 3 या 4 बिल्स हैं। सामने वाली पार्टी ने एक बिल चढ़ाया अपने जीएसटीआर में जो हमारे 2 में आ रहा है, ठीक है बाकी 3 बिल नहीं आ रहे। अब 3 बिल में से 2 की पेमेंट ही नहीं करी, पार्टी डिस्प्यूट में पड़ गई अब हमारी। ठीक है और पार्टी ने सिमिलरली आईटीसी क्लेम किया हुआ है 4 बिलों का। ठीक है अब मेरा कंसर्न यही था कि मैंने पार्टी को एडवाइस किया कि देखो जी, आप पहले या तो पेमेंट नहीं कर रखी, क्योंकि वो भी इशू है, क्योंकि आपने 2 बिलों की पेमेंट ही नहीं कर रखी। कल को आप जाएंगे कहाँ, 2 बिल तो आप बाहर निकाल दो। ठीक है 2 बिल पे आप लिटिगेशन कर सकते हो कि 2 बिल की मैंने पेमेंट कर रखी है, मैं इसका आईटीसी ले चुका हूँ। तो अब ठीक है अगर आज की डेट में वो पार्टी, मतलब हम मेरे पार्टी सामने पार्टी को पेमेंट कर देती है, आज की डेट की बात कर रहा हूँ सर मैं, ठीक है 180 डेज वाला कुछ सिंपल टर्नओवर भी उसकी बिलो है, कोई जीएसटी ऑडिट भी नहीं है, जीएसटी बन भी नहीं है, तो जो रिमेनिंग 2 बिल की पेमेंट का आईटीसी जो उसने शुरू में क्लेम कर लिया, ठीक है उसका क्या इशू रहेगा सर? कि अगर आज वो पेमेंट कर देता है पर जीएसटी तो अब जाएगी नहीं, सामने टाइम जा चुका है, 17-18 का मैटर। ठीक है उस 2 बिलों की पेमेंट का क्या रहेगा सर? कल को अगर मैं 4 बिल के प्रोड्यूस करूँ, 2 बिल की पेमेंट मैंने उस टाइम पे कर दी थी, रिमेनिंग 2 बिलों क्या रहेगा सर? उस केस में आप ये कैलकुलेशन बनाना चाह रहे हो, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि मैं ये कहता हूँ कि वो चीजों की पेमेंट तो हो गई थी, आगे वाली पेमेंट पेंडिंग है, आप फीफो बेसिस अपनाना चाहते हो, और आप ऑन अकाउंट पेमेंट रख के आप ये कहना चाहते हो कि जी पेंडिंग लेटेस्ट वाले हैं, ठीक है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट के मेरे पास सारी कंडीशंस है। मदान साहब, अगर आप कैलकुलेशन को ऐसे मेंटेन कर सकते हो, दैट इज टोटली ओके, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो आपने बोला, अगर आपने वैसे मेंटेन कर लिया, आपने रिलेट कर दिया, दैट इज परफेक्टली ओके सर, नो बडी कैन चैलेंज, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है सर। Thank you so much, sir. Thank you for sharing your wonderful session and My for pleasure. sharing your valuable knowledge on GST audit. I would like to say that it was very wonderful session. Now I request our branch ex-chairman Praveen Madanji to address on today's session. Praveen Madanji. थैंक यू राजेश भाई। अभय जी को तो हमने बहुत बारी सुना हुआ है, और वंस अगेन फिर दोबारा से सुनने में बहुत ही रियली में बहुत मजा आता है नवा जी आपको सुनने में। माय प्लेजर सर। सच में सर, बहुत ही वंडरफुल सेशन था सर, बिल्कुल मतलब ग्राउंड टू की जो हम सोच सकते हैं और जो हमारी क्वेरी हो सकती है, आपने उससे पहले ही एड्रेस कर लिया। टू वे कम्युनिकेशन आप लेके चलते हैं हमेशा। जी सर। थैंक यू, सच ए वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, Praveen Madanji, and thank you, Navya Malhotra ji. Thank you so much for your such a wonderful session, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू।